Assalamu alaikum. Participant, welcome back on Learning Legends board. Let me introduce myself. My name is Mansoor Ahmed. I'm a social entrepreneur and corporate trainer. Now we have a very distinguished today, Mr. Sikandar Ali, and he is a senior consultant and training facilitator. And let me also give you a little brief about Mr. Sikandar Ali Khan. Sikandar Saab has a degree of a Master of Philosophy and Management Sciences and BBA honors. He has also a certification of a branding and new marketing from IBA Karachi, certified trainer from Qasim Ali Shah Foundation, Lahore, and 1 year teaching certification from Allama Iqbal Open University, Islamabad. He has also diversified experience in banking and automobile sector. Besides that, Mr. Sikandar has also done many sessions. Some recently conducted sessions are live morning show with the Faisal Qureshi on Yarba Zindagi, a Global Peace Summit Conference, Marriott Karachi, Pak Army, SSET, College of Fashion Designing Karachi, Rose News, which is a live TV show. Apart from this, National University of Modern Languages, Islamabad, National University of Science and Technology, Rawalpindi, Isuzu Motors, which is a part of Gandhara Industries Limited, Miral Traders, Global FM 91, Step Ahead Lahore, Qasim Ali Shah Foundation Lahore, Gumal University DI Khan, Gumal University Distance Education Bakhar, Cairns College DI Khan, University Wensum College DI Khan. So it was a brief introduction of Mr. Sikandar Ali Khan Sahab, who is a very much senior professional and a senior trainer and one of the renowned name in the industry. Sikandar Ali Saab, you are very warm welcome, or I hope you are going to have a great day today, inshallah, with us. So, sir, could you please pay a little thanks note to the participants, sir? Sir, first of all, I'm really thankful to you, and I'm really thankful to the this platform you have given me. I'm thankful to the IBA. I'm thankful to the all participant who are being there, and you have explained. You have given me briefly introduced myself, and today we have a very great session about self branding and. Today it's not kind of training, it's not kind of a one way session, it's a two way session. और नॉर्मली ये होता है कि मेरे सेशन के अंदर कि हम थोड़ा सा इंटरेक्टिव करते हैं उसको ऑडियंस के हवाले से, और उसके अलावा ये होता है कि क्वेश्चंस आंसर्स भी उसमें होंगे, और डेफिनेटली ये एक टू वे लर्निंग प्रोसेस होता है। और बाकी सर ने तकरीबन मेरे बारे में बता ही दिया, और मैं बेसिकली आज यहाँ पे एक स्टोरी के जरिए आप लोगों से बात करना चाहूंगा। मैं यहाँ पे आप लोगों को टीच करने के लिए नहीं हूँ, मैं यहाँ पे आपको ट्रेनिंग करने, बिकॉज उसकी रीजन ये है कि आप माशाल्लाह खुद सब ब्रांड है, और एक ऐसे ब्रांडेड इंस्टीट्यूशन से आप लोग ग्रेजुएट्स हैं जिसके लोग ख्वाब देखते हैं, लाइक मी। और मैं जैसे कि पहले सर से जिक्र कर रहा था कि मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं अपना मास्टर या अपना बैचलर आईपीएक्स से करूं या फिर लम से करूं, बट अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं कर सका। सो आई एम फ्रॉम बेसिकली आई एम फ्रॉम सर केपीके, आई बिलोंग टू very remote area of KPK, that is Dera Ismail Khan, shortly DI Khan। एंड यहाँ पे जो है इस किस्म के इंस्टीट्यूट्स, इस किस्म के चीजें नहीं है, लेकिन किस तरह से वो कौन सा प्रोसेस है, वो कौन सी रेसिपी है जो मैंने डिजाइन की, और जो मैंने उसको सोचा कि यहाँ से एक बंदा एक आम से स्कूल से उठ के और पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारों के अंदर जाके अपनी सर्विसेज दे सकता है, या आप ये कह सकते हैं कि एक आम सा बच्चा जो कि इतने रिमोट एरिया के अंदर जहाँ पे बेसिक नेसेसिटीज भी ना हो, बेसिक चीजें भी ना हो, और वहां से उसने अपना सेल्फ ब्रांड बनाया और आज आपके सामने। बेसिकली ये स्टोरी मेरा आज के सेशन के अंदर बताने की जो बताने का मकसद है। सो जो लोग बाहर हैं, लाइक दे आर लिविंग कराची, दे आर लिविंग सक्कर, दे आर लिविंग इन बिग सिटीज, बिग प्लेसेस वेयर दे हैव अ वेरी फेमस एंड वेरी बिग इंस्टीट्यूशंस लाइक आईबीए। सो वो लोग जब माशाल्लाह से वहां से निकलते हैं और बड़े बड़े इदारों के अंदर माशाल्लाह जाके सर्व करते हैं, लेकिन बहुत कम शायद मेरी नाचीज राय के अंदर ये कि बहुत कम मुझे ये देखने को मिलता है कि पर्सनल ब्रांड नहीं है। लाइक है, ऐसा नहीं है कि नहीं होंगे, लेकिन पर्सनल जो एक उसका अपना ब्रांड हो ना, मैं सोचता हूँ कि वहां से
उसकी एक अपनी शिनाख्त भी हो, ताकि उसको केपीके के लोग भी जाने, उसको पंजाब के लोग भी जाने, उसको इस्लामाबाद, उसको दुनिया माने। सो वो उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। एंड सर ने बहुत सारे सेशंस की मेरी बात की। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काफ़ी जगह सर्व किए हैं ट्रेनिंग सॉफ्ट स्किल्स की। बेसिकली आई एम सॉफ्ट स्किल्स कॉर्पोरेट ट्रेनर। सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर मैं ट्रेनिंग्स फॉर्म करता हूँ। एंड बिफोर कोविड आई वेंट टू आगा खान हॉस्पिटल कराची। आई वेंट टू डिफरेंट लाइव मॉर्निंग शोज, और बाकी सर ने तकरीबन बता दी है। सो आज जो हम बात करेंगे वो ब्रांडिंग के ऊपर बात करेंगे, और ब्रांडिंग के अंदर सिर्फ मैं बात नहीं करूंगा, मैं चाहूंगा कि सर भी हमें इसमें सपोर्ट करें, और मैं चाहूंगा कि आप लोग भी हमें सपोर्ट करें। सो पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर बात करेंगे, और पर्सनल ब्रांडिंग कैसे आपको अपनी जिंदगी के अंदर फायदा पहुंचा सकती है। आजकल के दौर के अंदर एक बंदे का अपना जाती ब्रांड होना कितना इंपॉर्टेंट है। बिकॉज एट दैट टाइम व्हेन वी वर स्टडिंग, उस वक्त हमारे पास ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स नहीं थे, ये सब चीजें नहीं थी। लेकिन उसके बाद जब आई तो वो उस चीजों को हमने कैसे यूटिलाइज किया, और कैसे कैश करके एक छोटा सा, मैं समझता हूँ छोटा सा, हमने अपना पर्सनल ब्रांड बनाया। सो आजकल इस सोशल मीडिया के ऊपर हम कैसे अपने एक परसेप्शन क्रिएट कर सकते हैं। फिर रेसिपी बताऊंगा कि पर्सनल ब्रांडिंग के अंदर उसकी उसकी बेसिकली रेसिपी क्या है, जो मैं समझता हूँ कि मेरे जाती एक्सपीरियंस से मैंने उसको डिजाइन की, कि उस अगर उन पॉइंट्स के ऊपर हम बैठ के वर्क कर लें तो उसका फायदा क्या होगा, और कैसे हमारा पर्सनल ब्रांड बनेगा। फिर उसमें हम थोड़ा सा और भी डिस्कशन करेंगे। तो सर बेसिकली आज ये सब कुछ होने वाला है यहाँ पे, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी इसमें अपना इनपुट देके मुझे भी काफी लर्न करने का मौका देंगे। Wonderful, that's wonderful. And I would also like to thank the participants. So we are starting a session, sir. Sir, starting सर from my question, if you allow me kindly, मैं सर थोड़ा प्लीज सर। straightforward, though you are a very senior professional, it's very difficult for me to ask you question in this direct, encounter. So still, सर just for the सर sake of a participation, sir, generally for the sake of understanding only, I would like you कि मैं जानना चाह रहा हूँ कि आप बेसिकली ब्रांडिंग को या ब्रांड को किस तरीके से डिफाइन करेंगे व्हेन वी टॉक अबाउट ब्रांड योरसेल्फ, सर हाउ एक्चुअली सर आप सर ये जो बनाई है उसके पीछे आपका क्या कॉन्सेप्ट है, एंड हाउ एक्चुअली इज गोइंग टू बेनिफिशियल फॉर द पार्टिसिपेंट्स। सर बेसिकली ये जो मेरा सवाल ही पहले यही था, जहां से मैंने स्टार्ट करना था। बड़ा अच्छा लगा कि आपने वही सवाल पूछ लिया मुझसे। सर जब हम बीबीए कर रहे थे तो वहां पे हमने जो फिलिप कॉटलर की बुक के अंदर थोड़ा सा हमने मार्केटिंग के बारे में पढ़ा, तो वहां से एक माइंड के अंदर एक चीज आई कि ये जो चीज हम पढ़ रहे हैं, ये जो हम मार्केट सेगमेंटेशन पढ़ते हैं, या ये जो बाकी चीजें हम पढ़ते हैं, इनको हम अपने ऊपर क्यों नहीं इस्तेमाल करते। वहां से मेरे अंदर उस वक्त 2008-9 की बात है, मेरे माइंड के अंदर एक चीज आई थी, और वहां से मैंने इसके ऊपर सोचना शुरू किया। मेरी नजर में सर जो ब्रांड है ना, आपके क्वेश्चन के जवाब को, मेरी नजर में ब्रांड सर, पहले ब्रांड को बता देता हूँ, फिर मैं पर्सनल ब्रांडिंग की बात करूंगा। मेरी नजर में सर जो ब्रांड है ना, ब्रांड इज नॉट अ प्रोडक्ट, ब्रांड इज नॉट अ सर्विस। मेरी नजर में जो ब्रांड है वो ब्रांड इज अ सिंगल आइडिया, अ ब्रांड इज अ प्रॉमिस। चीजें नहीं बिकती, वो जो उसके पीछे मैसेज होता है, उसके पीछे जो प्रॉमिस होता है। कोई भी कंपनी कोई भी प्रोडक्ट जब बेचती है तो बेसिकली वो अपना प्रोडक्ट नहीं सेल कर रही होती, वो उसके पीछे जो है वो एक आइडिया सेल कर रही होती है, उसके पीछे जो है वो अपना एक प्रॉमिस जो होती है वो सेल कर रही होती है, और एक परसेप्शन जो होती है वो बेसिकली सेल रही होती है। तो मैं ब्रांड को इस नजर से देखता हूँ कि ब्रांड इज अ सिंगल आइडिया, इट्स जस्ट लाइक अ प्रॉमिस, इट्स जस्ट लाइक अ कमिटमेंट। तो ये मेरी नजर में एक ब्रांड है। और मैं यहाँ पे किसी भी जो बड़े मशहूर ब्रांड्स हैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, मैं वैसे ही आपको बता देता हूँ। और हम सब जो हैं, लाइक मैं समझता हूँ कि मैं, आप, हम सब जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, हम सब भी एक ब्रांड की तरह है। उस वक्त मैंने ये बात की थी जब व्हेन आई वाज डूइंग माय बीबीए, उस वक्त ये बात की थी कि यहाँ पे मेरे साथ बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन जब यहाँ से निकलेंगे तो कितने कितने लोगों को यहाँ पे टीचर्स जानते होंगे, कितने लोगों को यहाँ का स्टाफ जानता होगा, कितने लोगों को बाहर जाके माशा जानता होगा। सो मैं हर एक इंसान को एक ब्रांड की तरह देखता हूँ। तो उस वक्त ये था कि अपना एक जाती ब्रांड होना चाहिए। लोग सिकंदर को सिकंदर के नाम से जाने, जब उनके नाम में सिकंदर का नाम लिया जाए तो सिर्फ एक सिकंदर आना चाहिए उनके माइंड के अंदर, जिसके बाल नहीं है, और वो मैं हूं। तो वो जो है उस किस्म की मैंने अपनी एक परसेप्शन क्रिएट करना शुरू कर दी। तो पर्सनल ब्रांडिंग सर क्या है? पर्सनल ब्रांडिंग सर मैं ये समझता हूँ कि जब आप एक रूम के अंदर नहीं होते ना, तो कोई आपके बारे में जो बात कर रहा हो तो बेसिकली यही आपकी ब्रांडिंग है। जब
आपकी गैर मौजूदगी के अंदर लोग आपका जिक्र करें, जब और लोग से समझते हैं कि पर्सनल ब्रांडिंग इज जस्ट लाइक अ सेल्फ प्रमोशन। मैं समझता हूं कि पर्सनल ब्रांडिंग इज अ सेल्फ डिफरेंशिएशन, कि लोगों से आप मुख्तलिफ नजर आए जब आप दिखने में हो, चाहे वो आप बातचीत करने में हो, चाहे वो आपका स्टाइल हो, चाहे आपकी वो यूनिकनेस हो, चाहे वो जो भी चीज हो, बट आप थोड़ा सा मुख्तलिफ नजर आए। एक बिजनेस का स्टूडेंट और एक जो है दूसरा ग्रेजुएट है, उसके अंदर मैं समझता हूँ एक बेसिक जो डिफरेंस मुझे नजर आना चाहिए, या मैं समझता हूँ मेरे अंदर नजर आना चाहिए, वो है आपकी पर्सनल ब्रांडिंग। और फिर उसके बाद जब आप किसी महफिल में बैठते हो, आप किसी गैदरिंग में जाते हो, आप कहीं पे भी बातचीत करते हो, सो पीपल आपके बारे में, लोग आपके बारे में बात करते हैं। हम ब्रांड कैसे हैं सर? वी आर रिप्रेजेंटिंग आवर फैमिलीज, वी आर रिप्रेजेंटिंग आवर इंस्टीट्यूशन, वी आर रिप्रेजेंटिंग आवर टीचर्स, वी आर रिप्रेजेंटिंग आवर नॉर्म्स, वैल्यूज, कल्चर। सो मैं जब जहाँ पे जाऊंगा तो मैं किसी न किसी को रिप्रेजेंट कर रहा होता हूँ। सेम ऐसे ही जब कोई प्रोडक्ट मार्केट के अंदर होता है सर, तो वो अपनी पेरेंट कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और लोग उसके लोगों को, लोग उसकी पैकेजिंग को, लोग उसकी डिजाइनिंग को, स्लोगन को, उसके कलर स्कीम को देखते हुए, जो भी उस ब्रांड के साथ लॉयल्टी होती है, जो भी उस ब्रांड से अटैचमेंट होती है, उसको देख के वो चीज खरीदते हैं। तो सेम वही फार्मूला, वही चीजें हम अपने ऊपर वही पैकेजिंग डाल दें, अपने अंदर वही कलर स्कीम यूज कर दें, अपने अंदर वही स्लोगन डाल दें, अपने अंदर वही ब्रांडिंग कर दें, तो उस ब्रांडिंग से आपको फायदा होगा कि आपका एक पर्सनल ब्रांड बन जाएगा सर। आपने बड़ी एक खूब बात कही कि इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिंग डिफरेंशिएशन फ्रॉम टू कीप यू स्टैंड आउट ऑफ द कंपटीशन और सम सिमिलर ब्रांड्स. So you are somehow referring to the point that is a unique point selling. I mean, so how do you define the unique point selling? आपने किस तरीके से सर अपनी unique point selling को डेवलप किया? थोड़ा सा अगर हम जानना चाहें इसके बारे में तो. सर बेसिकली यू आर टॉकिंग अबाउट द एप्टीट्यूड। देखें, हर इंसान के अंदर सर बड़ी इंपॉर्टेंट दो चीजें होती हैं, एक उसका एटीट्यूड होता है और इसका एप्टीट्यूड होता है। जब मैं अपना बीबीए करके निकला, सो आई वाज वर्किंग विद अ वेल नोन कंपनी। फिर वहां से मैंने कुछ ट्रेनर्स को देखा जो हमें ट्रेनिंग्स देने आया करते थे। तो जब वो ट्रेनिंग मैं ले रहा था, तो वहां पे जो मैंने अपना इनपुट दिया, तो वहां से जो मुझे फीडबैक मिला, तो मुझे लगा कि मैं भी ये चीज कर सकता हूँ जो ये साहब कर रहे हैं। और शायद मैं ये उस वक्त ये सोच रहा था कि अगर मैं अपने ऊपर वर्किंग करता हूँ, मैं अपने ऊपर काम करता हूँ, मैं किसी अच्छे इदारे से सर्टिफिकेशंस कर लेता हूँ, मैं अपने आप को और मजीद अच्छा वेल ग्रूम करता हूँ, तो मैं हो सकता है कि इनसे बेहतर परफॉर्म करूँ। तो मैंने अपने एप्टीट्यूड को देखा कि मेरे अंदर बेसिकली वो मेरी स्किल्स क्या है, मेरी वो यूनिक सेलिंग जो पॉइंट है, वो यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन है, वो क्या है। तो मुझे शुरू से शौक था कि मैं टीचिंग की साइड पे हूँ, बिकॉज माय पेरेंट्स आर दे आर टीचर, फॉर्मर टीचर्स। तो वो स्कूल टीचर्स से वहां पे बच्चों को पढ़ाते थे, क्योंकि रिमोट एरिया से बिलोंग करते हैं, तो वो आपको पता है कि बच्चे वो टॉट वाले स्कूल से ही हमारी एजुकेशन होती है। तो वो एक चीज ब्लड के अंदर भी थी कि भाई टीचिंग करनी है, चाहे वो यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर हो, चाहे वो आप समझ लें कि पब्लिक स्पीकिंग हो, या व्हाटएवर कुछ भी हो। तो वहां से मुझे ये चीज मिली कि मेरे अंदर भी ये यूनिकनेस है कि मैं भी ये चीज कर सकता हूँ। देन मैंने सर उसको अपने ऊपर अप्लाई करना शुरू कर दिया। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि जब आप अपना ब्रांड बनाते हो, तो उसके अंदर इट्स नॉट कप ऑफ टी कि आपने एक ही दिन में आपको वो सक्सेस मिल जाए, एक ही दिन में आपको वो सारे ख्वाब आपके पूरे हो जाएं। इट्स वो बड़ी खूबसूरत बात आइसबर्ग की थ्योरी की तरह है सर, के ऊपर से आपको जितनी सक्सेस नजर आती है, तो डेप्थ में उतनी ही आपको मुश्किलात, उतनी ही आपको तकलीफ, उतनी चीजें आपको करनी पड़ती हैं। तो उस वक्त जब मैंने ये चीज कर लिया, लेकिन मेरे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, वेरी फ्रेंकली स्पीकिंग। देन आई वेंट टू माई स्कूल एंड कॉलेज। मैं जहां पढ़ता था, वेयर आई स्पेंड मोर देन 12 years, तो मैंने उनसे कहा कि सर मैं आज जो है आके यहाँ पे रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, अपने इदारे को कुछ रिटर्न करना चाहता हूँ, बिकॉज मैं यहाँ सर्व कर चुका हूँ। तो उन्होंने मुझे प्लेटफॉर्म जब दिया, तो मैंने बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया उस सेशन के अंदर, और ताकि मुझे एक फीडबैक मिले कि भाई ये जिसके ऊपर मैं जो काम कर रहा हूँ, जो टेस्ट करने जा रहा हूँ, ये ब्रांड क्या मार्केट में चलेगा ही या नहीं। तो वहां से जो मुझे फीडबैक मिला अपने टीचर से, अपने लोगों से जो मेरे बाहर से प्रोफेशनल थे, तो देन आई डिसाइडेड टू जंप, कि मैंने कि अब जंप कर लेना चाहिए और अब जाके इस यूएसपी जो है इसके ऊपर इसको सेल करना चाहिए। देन अल्लाह ताला ने, जब आप एफर्ट करते हो तो अल्लाह ताला आपके रास्ते निकालता है। तो देन सर मैंने इसको डिसाइड कर लिया कि अब इसको प्रॉपर एज ए प्रोफेशनल मुझे ये काम करना चाहिए। सो हर इंसान के अंदर मैं ये समझता हूँ कि उसके अंदर अल्लाह ताला ने कोई ना कोई सलाहियत जरूर रखी होगी, सिर्फ उसको पहचानने की देर है।
अगर हम पहचान लेते हैं तो वेल एंड गुड। बात दफा ये होता है सर कि हमने उस चीज को पहचाना होता है, बट हम डर रहे होते हैं, मैंने ऐसे किया तो हो सकता है मैं नाकाम हो जाऊं, मैं ऐसा करूं तो लोग क्या कहेंगे, मैं ऐसा करूं तो मेरे पेरेंट्स क्या कहेंगे, मेरे बहन भाई, मेरे कजिन्स, मेरे टीचर्स, या मुझे ऐसे करने से। तो उसके माइंड के अंदर उस वक्त, मेरे माइंड के अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे। हर इंसान के माइंड के अंदर इस तरह के बहुत सारे सवालात होते हैं। अब डिपेंड हमारे ऊपर करता है कि हम उन सवालों का मुकाबला करते हैं, उनको आंसर करने की ट्राई करते हैं, या उन सवालात का खौफ अपने ऊपर तारी करके हम अपने ब्रांड को वहां पे खत्म कर देते हैं। तो ये हमारे ऊपर सर डिपेंड करता है। तो इस तरीके से सर मैंने अपना वो जो है ना अपनी स्किल्स को पहचाना और उसको डेवलप करने की मैंने कोशिश की सर। All right, sir. That's wonderful. So somehow इस प्रोसेस के अंदर सर आपने मुख्तलिफ डिस्कशन की, यू गॉन थ्रू द डिफरेंट चैलेंजेस, आपको बहुत सारी मुश्किलात भी आई, चैलेंजेस भी दरपेश आए, और somehow कोई परसेप्शंस भी आपको उनका भी फियर था, because you were taking a risk of about your personal entity कि आप engage कर रहे हैं लोगों को on your personal cost. So उन fears को किस तरीके से आपने overcome किया, because it is not easy for everyone to be a public speaker, और उस दौरान आप अपने मैसेज को across the board जो है किस तरीके से आपने कन्वे किया. So what was that motivation in your mind and your determination that forced you कि आपको बनना ही है, आज तो कुछ करके दिखाना है. सर बड़ा अच्छा सवाल किया आपने सर। सर बात यह है कि जब सिपाही जंग के अंदर जाता है ना सर, तो उस वक्त वो गोलियों की, गोले बारूद की, जहाजों की आवाज से डरता नहीं है। उसका माइंड में एक ही चीज होती है कि मैंने जाके फाइट करना है, और मैंने अपनी कंट्री के लिए फाइट करना है, मैंने अपनी प्लाटून के लिए फाइट करना है, मैंने अपने लोगों के लिए फाइट करना है। वट एवर मेरे साथ कुछ भी हो जाए, मुझे गोली लग जाए, मुझे कुछ भी हो जाए, बट आई वॉन्ट टू फाइट। सो जब एक यही मेंटेलिटी, यही जो सोल्जर की थिंकिंग थी, मैंने अपने माइंड के अंदर रखी कि लोग तो कहते हैं, और जो फियर्स है मेरे ऊपर, जो खौफ है शायद मैं नहीं कर सकूं, मैंने इसको, जितना मेरे ऊपर खौफ होता था सर, मैं आज आपको एक बात बता रहा हूं, उतनी ज्यादा मैं उसको खत्म करने के लिए मेहनत करता था। उतनी चीज, उस चीज को खत्म करने के लिए मैं राइटिंग करता था, मैं चीजें लिखता था, मैं प्रपोजल लिखता था, और मैं डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस को भेजता था, और हर एक इंस्टीट्यूशन की मैं उसकी स्टडी करता था कि उसके 2 साल में कौन कौन से इवेंट्स हुए हैं। लाइक मैं एक इवेंट जो अपना मैंने आपको बताया स्कूल कॉलेज के करने के बाद, आई वेंट टू ईएमई कॉलेज नस्ट, जो कि एक नस्ट एक बहुत बड़ा ब्रांड है, बट उन्होंने मुझे क्यों बुलाया, बिकॉज आई स्टडीड उनके, मैंने तकरीबन 2 साल के उनके इवेंट्स पढ़े, और उसमें 2 साल के अंदर उनके कुछ बच्चों ने सुसाइड अटेम्प्ट किया था। सो मैंने उनको जाके अपना प्रपोजल सेंड किया कि भाई मैं सुसाइड के ऊपर आके बात करता हूँ, सुसाइड इज नॉट एन ऑप्शन। और वो मैंने, जो मेरी स्टोरी थी, बेसिकली अपनी स्टोरी जाके मैंने वहां पे बताई कि मेरे पास भी 2 रास्ते थे, फाइट और या फ्लाइट के। तो मैंने फाइट किया, मैंने फ्लाइट वो नहीं किया, अपने उस परेशानियों से या उस मुश्किल से मैं मुंह फेर के नहीं गया। सो आपको थोड़ा टेक्निकल चलना पड़ता है सर, आपको थोड़ा सा देखना पड़ता है कि मुझे लोग क्यों हायर करें, या मुझे कहते हैं ना कि मुझे लोग क्यों जॉब दें, मैं क्या उनको दे सकता हूँ, या मैं अपने आप को कैसे सेल कर सकता हूँ। तो मुझे अपनी यूनिकनेस का पता हो, मुझे अपनी जब सारी चीजों का पता होगा, फिर मुझे स्टडी के साथ जाना चाहिए। जैसे मैं गया, आई वेंट टू डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, बट मैंने उनकी वो चीजों को स्टडी किया। उन चीजों को स्टडी करने के बाद मैंने जब उनको प्रपोजल सेंड किए, तो उन्होंने कहा बिल्कुल आप आए आपकी बात करें। फिर वहां से फीडबैक आया, तो उन्होंने मुझे वो कंटिन्यूसली, मैंने उसको रिटेन किया। एक अच्छे बिजनेसमैन, एक अच्छा ब्रांड, एक अच्छा चीज वो होती है जो अपनी रिटेंशन को बरकरार रखता है। आप ग्रो करते हो, आप जब रिटेन करते हो, तो आपके कस्टमर्स ऑटोमेटिकली और भी आपके पास आते हैं। तो मैंने अपने फियर्स को सर अपने ऊपर हावी नहीं होने दिए, और जो लोग इन फियर्स को या इन खौफ को अपने ऊपर हावी कर लेते हैं, तो मेरी नजर के अंदर उनका पर्सनल ब्रांड नहीं बन पाता। हर एक इंसान बहुत कुछ कर सकता है। मेरी वजाहत से भी बात हो रही है, तो वजाहत भी कर सकते हैं, मैंने कर दिया, आप कर सकते हैं। वही बात है सर कि जो बड़े शहरों में बैठे हैं, जो माशाल्लाह जिन इदारों में आप बैठे हैं, जिन इदारों से बच्चे पढ़ के निकलते हैं, उनके पास दुनिया की हर चीज होती है, हर सहूलत होती है। और जो बच्चे रिमोट एरियाज के होते हैं, जहां के उनको सहूलत नहीं मिलती, शायद उनमें बुनियादी फर्क जो मुझे नजर आता है, वो रिस्क टेकर होते हैं, और वो समझते हैं कि रिस्क ले लेना चाहिए। और जो हम जिस तरह बैठे होते हैं बड़े शहरों में, मैंने बात किया इस तरह के, तो हम थोड़ा सा घबरा रहे होते हैं कि मुझे जॉब की तरफ जाना चाहिए, मुझे मेजर्स कौन से रखने चाहिए। यहाँ तक कि बच्चे 6 सेमेस्टर पढ़ने के बाद ये डिसाइड नहीं करने पाते कि मुझे फाइनेंस में जाना चाहिए, मुझे मार्केटिंग में जाना चाहिए, मुझे एचआर में जाना चाहिए, मुझे सप्लाई चेन में जाना चाहिए। तो अगर कोई सवाल 6 सेमेस्टर के बाद जाके बच्चा ये सवाल करता है, तो मेरे ख्याल से उसको दोबारा
अपने ऊपर सोचने की जरूरत है कि भाई सवाल क्यों कर रहा है, वो ये चीजें क्यों कर रहे हैं, बिकॉज ही एंड शी स्पेंट मोर देन 3 years। तो उसके बाद उसको समझ आ जानी चाहिए कि उसका एप्टीट्यूड क्या है। आप अपने आप एप्टीट्यूड डेवलप करो, आप अपनी यूनिकनेस को पहचानो, उसके बाद फिर आप अपने मार्केट में जब सेल करने के लिए रिस्क लेते हो तो मेरे ख्याल से आप उसको बेहतर अंदाज में सेल कर सकते हो और अपने खौफ के ऊपर भी काबू पा सकते हो। ऑलराइट सर। सर एक चीज आपने मुझे बताई, मैं थोड़ा सा डिस्कशन में पीछे की तरफ लेके जा रहा हूँ कि लाइक यू वेंट थ्रू मैनेजिंग ऑल द स्ट्रेटेजीज। माशाल्लाह, अब ये कहना आपका ब्रांड तो नहीं है, यू आर अ बिग ब्रांड टुडे माशाल्लाह इन द मार्केट, यू आर वेरी रिकग्नाइज्ड एंड रिनोन्ड। So what would you advise to the students, today's students, जिस तरह आपने खुद point out भी किया कि today's students are actually little bit clueless about their future and future course of action। तो आप क्या उनको गाइड करेंगे? इफ एनी स्टूडेंट, अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि आज वो अपने ब्रांड बिल्डिंग के लिए कुछ बनाए, तो व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रेटजी वुड यू लाइक टू सजेस्ट दोज स्टूडेंट्स कि सबसे पहले और दूसरी, पहली दूसरी तीसरी चीजें उनको क्या करनी चाहिए अपने ब्रांड बिल्डिंग के लिए? सर ये बड़ा अच्छा सवाल किया है। ये आगे जाके मैं आपको इसकी रेसिपी भी बताता, लेकिन आपने सवाल अभी कर लिया तो इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। इससे पहले सर जो लोग हमें ज्वाइन कर चुके हैं, मैं एक छोटी सी एक्टिविटी कराना चाहता हूँ। और उस एक्टिविटी के बाद पता है क्या होगा सर? उस एक्टिविटी के बाद ये होगा कि हर बंदे को ना एक उसके माइंड के अंदर चीज आ जाएगी कि भाई मैं ब्रांड हूँ या मेरा ब्रांड क्या है। इस एक्टिविटी के अंदर ये जब हम ऑडिटोरियम में होते हैं तो बड़ी ऑडियंस होती है, उसमें जब एक्टिविटीज कराते हैं तो बड़ा एक जबरदस्त फीडबैक मिलता है, क्योंकि उस वक्त लोग अपने आप को पहचान लेते हैं। सो एक्टिविटी सर क्या है एक्टिविटी सर? बेसिकली ये है कि जो भी लोग यहाँ पे मेरे साथ मौजूद हैं, चाहे वजाद हो, राबी हो, आप हैं, जो भी हैं, आप लोग सर अपनी 10 सेकंड के लिए आंखें बंद करें और उसके बाद आप लोग बड़े ध्यान से हर चीज को माइंड से निकाल के, अपनी परेशानियां, टेंशन, हर चीज निकाल के ना आप जस्ट मुझे सुने। और बेसिकली मैं ये करना चाह रहा हूँ कि आपका ब्रांड को आइडेंटिफाई करता हूँ कि आपको भी समझ आ जाएगा आपके माइंड में आपका ब्रांड क्या है। तो सर एक्टिविटी ये है कि आंखें बंद करने के बाद आप लोगों ने ये सोचना है कि सुबह सुबह आप उठे और आपको एक 2-3 बड़ी बड़ी गाड़ियां लेने के लिए आई हुई हैं और उसके बाद वो आपको एक बड़े से स्टेडियम में लेके जाना चाहती हैं। आप बाहर निकलते हैं, लोग आपके लिए गाड़ी का दरवाजा खोलते हैं, अब आप बैठ रहे हैं और अब बैठने के बाद आप एक ऐसी प्लेस के ऊपर जा रहे हैं तकरीबन जहां पे मोर देन 70,000 पीपल या 50,000 ऑडियंस आपका वेट कर रही है और आपके पेरेंट्स को बड़े बेहतरीन अंदाज से वहां पे पहुंचाया जा रहा है। और जैसे ही आप उस गाड़ी में बैठते हैं और गाड़ी आपको लेके जाती है स्टेडियम के अंदर, तो बड़ी क्लैपिंग होती है और आप गाड़ी का दरवाजा खुलता है, उसके बाद आप बाहर आते हैं तो स्पॉटलाइट आपके ऊपर आती है और उसके बाद लोग खड़े होके और पागलों की तरह जो है ना आवाजें लगा रहे होते हैं। और उस वक्त आप ये सोचते हो कि ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। नो तो क्वेश्चन इज, सवाल सिर्फ ये है कि आपके माइंड में सर ऐसी, यहां तक पहुंचने के लिए आपके माइंड के अंदर ऐसी क्या चीज आती है जो आप सोचते हो कि अगर मैं वो चीज कर लूं तो मेरे लिए सब कुछ होगा। तो ये चीज मेरे माइंड के अंदर उस वक्त ये आई कि अगर मैं पब्लिक स्पीकिंग, अगर मैं अपनी स्किल्स को डेवलप कर लेता हूं तो शायद हो सकता है कि मेरे लिए ये सब पॉसिबल हो। तो अभी शायद आपके माइंड में सब कुछ आया हो, कोई ऐसा एक इमेज, कोई एक ऐसा काम, कोई एक ऐसी ख्वाहिश, कोई एक ऐसा ख्वाब जो आपके माइंड के अंदर अभी आया हो कि मैं इस चीज के ऊपर अगर कर लेता हूं, अगर मैं सिर्फ फाइनेंस के अंदर जाके मैं काम कर लूं तो लोग कहें कि फाइनेंस का अगर कोई गुरु है, कोई किंग है तो ये बंद है, एचआर का है तो वो ये है, मार्केटिंग का है तो ये है। तो अब अपनी आप आंखें खोल लें, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी कहीं ना कहीं आपके माइंड के अंदर वो इमेज, वो ड्रीम, वो चीज जरूर आपको नजर आया होगा जो जिस ख्वाब को मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। तो ये एक्टिविटी जब लाइव होती है तो बड़ा मजा आता है, बड़े लोग एंजॉय करते हैं। तो क्या सर आपके माइंड के अंदर, मेरा सवाल ये, आपके माइंड के अंदर कुछ ऐसे कोई चीज नजर आपको आई कि अगर आप उस चीज के ऊपर काम कर लेते हैं तो आप समझते हैं कि ये सब कुछ पॉसिबल है? ये मेरा ख्याल है पार्टिसिपेंट से पूछना चाहिए। आई एम अनम्यूटिंग देम। अगर कोई पार्टिसिपेंट इसमें थोड़ा सा शेयर करना चाह रहा है तो दे आर मोर देन वेलकम। अगर उनने सिकंदर साहब की स्ट्रेटेजी को फॉलो किया है तो आई हैव 2 to 3 minutes for the participants. You can guys please share whatever you have thought about it that could actually lead you to the destination that you have in your mind. Please आप शेयर कर सकते हैं। ओके ठीक है सर, जब तक वो आते हैं इस पे बात करते हैं, तब तक हम इसको मजीद आगे बढ़ा लेते हैं। तो आप बात कर रहे थे कि सर कैसे आपको अपना ब्रांड बनाना है या कैसे आप अपना ब्रांड पहचानना है। सर देखिए, सबसे पहले तो बात यह है कि आपने अपने आप को डिस्कवर करना है।
और डिस्कवर करने का प्रोसेस सर ये है कि आपने अपना एप्टीट्यूड देखना है, जो मैं पहले ज़िक्र कर चुका हूँ कि वो कौन-सी चीज़ है, वो कौन-सी ख्वाहिश है, वो कौन-सा स्किल है, वो कौन-सी एनर्जी है जो आपको मोटिवेट करती है, जो आपको अपने ख्वाबों के पास ले जाने में मदद करती है। लाइक बहुत सारे लोग होते हैं जो जॉब्स कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी ख्वाहिश होती है कि वो कुछ ऐसा करें कि जहाँ से उनको एक सेल्फ सैटिस्फैक्शन मिले। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं सर के जो बाय बाय चॉइस और बाय चांस वो एक फील्ड को जो है सिलेक्ट कर लेते हैं। लाइक कि कोई बंदा चाहता है कि वो आर्टिस्ट बने, लेकिन वो पेरेंट्स की या किसी और की मर्जी से वो बिजनेस पढ़ रहा होता है, लेकिन फ्यूचर में जाके जब उसको मौका मिलता है और उस चीज के ऊपर काम करता है, तो वो बंदा कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है। तो जो आपको यूनिकनेस पता होनी चाहिए, जब आपको सबसे पहले आपको अपने डिस्कवर करना है। डिस्कवर करने का मैंने आपको बता दिया, उसके बाद आप अपनी उस यूनिकनेस के ऊपर काम करें, जो वो यूनिकनेस आपके अंदर पाई जाती है। बिकॉज मैं समझता हूँ इस दुनिया के अंदर हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ यूनिक जरूर है। हमारे थंब इम्प्रेशन तक अल्लाह ताला ने यूनिक बनाए, एक जैसे नहीं बनाए। तो वो यूनिकनेस आपकी क्या है, वो आप अच्छे राइटर भी हो सकते हो, अच्छे पोइट भी हो सकते हो, आर्टिस्ट भी हो सकते हो, पब्लिक स्पीकर भी हो सकते हो, आप जो चाहे हो सकते हो, लेकिन आपको आपकी यूनिकनेस का पता होना चाहिए। जब आपको अपनी यूनिकनेस का पता चल जाता है, फिर आप एक गोल सेट करो, और उस गोल सेट करने से पहले छोटे-छोटे ऑब्जेक्टिव बनाओ कि फर्स्ट 6 मंथ के अंदर आपको ये चीज़ करनी है, ये मेरा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। फिर उसके बाद आपको अगले 6 मंथ के लिए आपका ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। और एक जब आप गोल सेट कर लेते हो लाइक 1 ईयर, 1 एंड हाफ ईयर, तो उसके अंदर आप जाके अपनी वो जो यूनिकनेस है, जो आपने अपने आप को डिस्कवर किया होता है, आप अपने आप उसको लॉन्च कर लेते हो। लेकिन बिफोर लॉन्चिंग आपको एक अपनी सेल्फ आइडेंटिटी बनाना बहुत ज़रूरी है। और सेल्फ आइडेंटिटी बना के आपके जो करीबी लोग होते हैं, जिसके अंदर जो आपको ऑनेस्ट ओपिनियन दे सकें, जैसे आपके टीचर्स हो गए, जैसे आपके पेरेंट्स हो गए, जो या वो लोग जो समझते हैं कि आपको बड़ा ऑनेस्ट फीडबैक देंगे, उनके सामने जाके अपनी उस ब्रांडिंग को तो आप बनाए, उसको थोड़ा सा प्रेजेंट करें वहां के। वो जो ऑनेस्ट फीडबैक होगा, उसके ऊपर आप वर्किंग करें, फिर अपने आप को लॉन्च करें। तो आपका पर्सनल ब्रांड का एक स्टेप जो है वो आप उसके ऊपर अबूर हासिल कर लेते हो। लाइक अगर आपने वैसे ही बगैर इन चीजों के जाके आपने अपने आप को लॉन्च किया, तो हो सकता है बाद में वो आपका जो आप समझ रहे हो कि आपके अंदर वो यूनिकनेस है, और वो यूनिकनेस या वो स्किल्स या वो चीज बाहर जाके लोगों को मुतासिर नहीं कर पाती, तो वो एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा, और आपका वो ब्रांड भी खराब होगा। उससे फिर ये होगा कि आपके जो जहाँ से आपने पढ़ा होता है या जो लोग आपके इर्द गिर्द होते हैं, वो ब्रांड उनको भी खराब करते हैं। इसकी बड़ी एक जबरदस्त मिसाल है, जब पेप्सी अपना लेज लॉन्च कर रहा था, तो उस वक्त पेप्सी वन ऑफ की थिंकिंग थी कि अगर हम इसको लॉन्च वैसे ही कर लेते हैं, तो हो सकता है कि ये शायद कामयाब ना हो। लेकिन फिर उन्होंने ये किया कि उसको पेप्सी के साथ अपने ब्रांड का सहारा लेते हुए, पेप्सी लेस के साथ लोगों के साथ उन्होंने लेस को लॉन्च किया। और आज भी शायद कहीं कहीं मुझे देखने को मिलता है कि लेस की बैक साइड के ऊपर उन्होंने लिखा होता है प्रोडक्ट बाय पेप्सी को, और साथ पेप्सी की एक बॉटल लगा रखी होती है। तो समटाइम्स ये होता है कि हमें अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हमें भी कुछ ब्रांड्स की जरूरत पड़ती है। जो लोग ये कहते हैं कि भाई मैं हूं और बस बस मैं हूं, तो वो क्या होता है, वो पर्सनल ब्रांड नहीं करते। पर्सनल ब्रांडिंग इज ऑल अबाउट गिविंग अ सर्विस। और इसी तरह हमें ब्रांड्स की जरूरत पड़ती है, और वो ब्रांड्स कौन है? मेरी नजर में वो ब्रांड्स आपके पेरेंट्स हैं, मेरी नजर में वो ब्रांड्स आपके टीचर्स हैं, जो आपको आपका ब्रांड बनाने में एक बड़ा अच्छा सहारा देते हैं। और जब आपको पुश करते हैं, जब आपको मोटिवेट करते हैं, जब आपकी पर्सनालिटी के अंदर वो अपना इनपुट डालते हैं, तो उसके बाद आपके अंदर एक एनर्जी आती है, और उस एनर्जी को आप यूटिलाइज करते हो और अपना पर्सनल ब्रांड बनाते हो। तो बेसिकली सर ये जो है एक आप समझ लें कि फर्स्ट स्टेप है पर्सनल ब्रांडिंग के अंदर। और सवाल ये नहीं है कि पर्सनल ब्रांड आपने बना लिया, सवाल ये है कि पर्सनल ब्रांड क्यों जरूरी है। मैं ज्यादातर फोकस करता हूँ क्यों के ऊपर। देखिए, आप माशाल्लाह जितने प्रोफेशनल्स हैं, आप माशाल्लाह जितना आपके पास नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, शायद मेरी नाचीज राय के अंदर वो उस लेवल पे मैं ना हूं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि पर्सनल ब्रांड आजकल के दौर के अंदर इसलिए जरूरी है कि मार्केट के अंदर इतना कंपटीशन है सर। आप यकीन मानिए, मेरी कल एक साहब से बात हो रही थी, और उस इदारे के अंदर वो मुझे बता रहे थे कि एक जॉब आई है लेक्चर की बिजनेस साइट के ऊपर।
और वो कह रहे थे कि हमें यहाँ पे पीएचडी के जो हमारे डॉक्टर साहिबान हैं जो फ्रांस से आए हुए हैं या यूके से आए हुए हैं वो भी इस जॉब के लिए अप्लाई करें, जबकि वो जॉब एक लेक्चर की है, वो उनको एमएस या एमफिल का बंदा चाहिए। तो मार्केट के अंदर सर इतना ज्यादा आप समझ लें कि कंपटीशन है। और मोस्टली जो जैसे बच्चे निकलते हैं बीबीए के बाद या जैसे बच्चे निकलते हैं अपने मास्टर के बाद, तो ऑलमोस्ट हमें सबका सीवी सेम देखने को मिलता है। तो वहां पे आपको अपनी शायद पर्सनल ब्रांडिंग की जरूरत पड़े। और पर्सनल ब्रांडिंग आप अपने प्रोफाइल के अंदर कैसे कर सकते हो? आपने अपने बीबीए के बाद आपको चाहिए कि उस ड्यूरिंग बीबीए आप अपना सर्टिफिकेशंस कुछ कर ले, कुछ आप ऐसा वर्क कर लें जहां, और वर्क को वहां पे आप शो कर लें, तो वो आपका जो प्रोफाइल होगा दूसरे से थोड़ा सा डिफरेंट होगा और उसका कहीं ना कहीं आपको उसका एज जरूर मिलता है। तो एक तो सर पर्सनल ब्रांड आपको वहां पे बड़ा, जब लोग आपको जानते हैं, लोग आपके बारे में पॉजिटिव बात करते हैं, वर्ड ऑफ माउथ होता है। फिर इलेक्ट्रॉनिक, आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक वर्ड ऑफ माउथ बहुत चल रहा है। फिर लोग जब, आजकल तो ऐसा है कि जब आप लोग आपकी हायरिंग हो रहे थे, लोग आपके सोशल मीडिया को बकायदा विजिट करते हैं, आपके सोशल मीडिया को बकायदा देखा जाता है। बहुत अब तो माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से मैं कुछ यूनिवर्सिटीज में गया तो वहां पे मैंने बच्चों से बात की, तो दे डोंट नो अबाउट द लिंक्डइन, दे डोंट नो अबाउट द अदर साइट्स, दे वर नो अबाउट द फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम। सो आपकी जो फेसबुक प्रोफाइल है या आपका जो इंस्टाग्राम है, वो बेसिकली आपकी एक पर्सनालिटी को एक डिफाइन कर रहा होता है। लाइक मैं अभी सर से बात कर रहा था कल, मैं जब डॉक्टर साहब की मैंने प्रोफाइल विजिट किया तो मुझे इतना मजा आया। वहां पे इतनी जबरदस्त चीजें शेयर की हुई थी सर ने अपनी जो ये इनका ट्रेनिंग से रिलेटेड चीजें थी, और इन्होंने कुछ अभी 24 दिसंबर को शायद, या उससे सॉरी 12 दिसंबर को इन्होंने कोई सेशन करवाया, तो वो मुझे बड़ा मजा आया। तो मुझे एक फील हुआ कि भाई मेरी प्रोफाइल के अंदर भी एक ऐसी चीजें होनी चाहिए जो सर की प्रोफाइल में है, जो मैं उसको कंपेयर करने लग गया। तो ड्यूरिंग हायरिंग आपको कहीं ना कहीं पे लोग आपको मॉनिटर कर रहे होते हैं। तो अगर आपका एक अच्छा ब्रांड है, अच्छा वर्ड ऑफ माउथ है, इलेक्ट्रॉनिक वर्ड ऑफ माउथ है, लोग आपको रिकमेंड करते हैं। आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जाके बात कर सकते हो, और आप एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में जाके अपना नाम भी बना सकते हो और जॉब भी ले सकते हो। दूसरा सर बात यह है कि अब एक जॉब ओपनिंग होती है और मैंने बताया कि नंबर ऑफ कैंडिडेट उसके ऊपर अप्लाई करते हैं। फिर मार्केट के अंदर एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन है, अभी कोविड के अंदर और बिफोर कोविड के बड़ा अजीब सा एक कंपटीशन और एक बड़ा खौफ है और बड़ी अफरा तफरी है कि एक 6 मंथ के अंदर एक बेतहाशा स्टूडेंट्स निकलते हैं और वो एक ही जॉब के ऊपर अप्लाई करते हैं। फिर आप अपने आप को कैसे अच्छा वहां पे इंटरव्यूज के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हो? अगर आपने पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर काम किया है तो आप वहां पे डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो अपने और दूसरे बंदे के बाद। और जो बंदा पर्सनल ब्रांड होता है वो परसेप्शन क्रिएट करने के अंदर बड़ा माहिर होता है। उसको पता होता है कि उसने अपनी परसेप्शन किस तरह से क्रिएट करनी है और किस तरह से अपने आप को वहां पे सेल करना है। सो पर्सनल ब्रांडिंग आपको इस हवाले से भी बहुत फायदा देती है, चाहे वो आपकी जॉब्स हो और चाहे वो आपकी पर्सनल रिलेशंस। तो टू बी वेरी फ्रेंकली, वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग सर, आजकल तो ऐसा दौर है कि लोग जब रिश्ता कर रहे होते हैं ना सर, तो उस वक्त भी आपका प्रोफाइल देख रहे होते हैं फेसबुक ऊपर कि यहाँ पे क्या चल रहा है। और ऐसे बहुत सारे लोगों से मैं मिला हूँ और मैंने देखा है वहां पे कि वो चीजें देख रहे होते हैं कि वो साहब या साहिबा जो है ना, उन्होंने वो पेट्री चल रही है और क्या चल रहा है। और लोग, सच बताएं सर, सच्ची बात यह है कि लोग आजकल आपको सच नहीं बताते, वो आपकी सोशल मीडिया के ऊपर सच जरूर डालते हैं, क्योंकि जो फील कर रहा होता है वही वो सोशल मीडिया के ऊपर डाल रहा होता है। तो पर्सनल ब्रांडिंग आपको एक अवेयरनेस देती है आपके अंदर कि आपने अपने आप को लेके किस तरह से चलना है, आपने अपने अंदर आपने अपने आप को रिप्रेजेंट किस तरह से करना है। अगर आप अपने आप को एक अच्छा रिप्रेजेंट कर जाते हो, अपने आप को अच्छा सेल कर जाते हो, तो वहां पे आपके इंस्टीट्यूशन का नाम आएगा सबसे पहले कि ये इस इदारे से पढ़ा है, क्या बात होगी, अगर इनका बच्चा ऐसा है तो इनका टीचर कैसा होगा, इनका एनवायरनमेंट कैसा होगा, इनकी वहां पे स्टडी कैसी होगी। आपकी फैमिली के ऊपर लोग बात करते हैं पर्सनल ब्रांडिंग, जब आप कहीं पे भी जाओ, आप हो या ना हो, लोग आपसे मुतासिर होकर फैमिली के ऊपर भी बात करते हैं, आपकी फ्रेंड्स के ऊपर भी बात होती है, आपकी नॉर्म्स, वैल्यूज, कल्चर जो कि मैंने पहले बताया उसके ऊपर भी बात होती है। सो बेसिकली हम सब ब्रांड्स हैं, और जो लोग एक अच्छा ब्रांड होने के बावजूद अपने आप को वहां पे लॉन्च नहीं करते, अपने आप को वहां पे अच्छा नहीं बताते, तो हम सब उन लोग जैसे हैं जो ब्रांड नहीं है। तो बिजनेस स्टूडेंट को तो कम से कम अपना पर्सनल ब्रांड बनाना जरूर चाहिए सर। चलें सर, बाकी तो फायदे जरूर लेंगे, कम से कम एक फायदा जरूर ब्रांडिंग सीखने से हुआ कि तो लोगों के रिश्ते जरूर जल्दी हो जाएंगे सर। क्या ख्याल है आपका? ऑलराइट, सो
that was on a lighter note. So I want to know, sir, जिस तरह आपने काफी बताया, like I mean, जो मैंने आपकी डिस्कशन से फील किया है, that is about like it is not about only your own career, it is about your social image as well. कि आप जिस सोसाइटी में रहते हो, जिस Sir, सराउंडिंग्स में रहते हो, उसमें you being a human, you need to represent yourself. All right, sir. अच्छा, ये sir, हाउ वुड यू एडवाइस टू द स्टूडेंट्स, क्योंकि सर हमारे यंगस्टर्स हैं, बच्चे हैं, बहुत सारे प्रोफेशनल्स इंक्लूडिंग इवन ऑन सीनियर लेवल, वो इन चीज़ों को थोड़ा सा लाइटर साइड पे लेते हैं। वो कहते हैं कि हमारे लिए क्या इसके, ज़ाहिर है आपने बहुत कुछ बताया इसके बारे में कि यू कैन स्टैंड आउट ऑफ द कंपटीशन एंड यू कैन बी हाईलाइटेड इन फ्रंट ऑफ द कंपनीज एंड ऑल दैट। सो ये तो उनका लाइक मुख्तलिफ बेनिफिट्स आपने बताया। So how would you suggest, sir, कि अगर वो किसी का brand, for example, somebody is creating his own brand, how can he add value, he or she can add value in the workplace जहाँ पे वो काम कर रहे हैं, या जिस सोसाइटी में वो काम कर रही हैं, या जिस सोसाइटी में वो रह रहे हैं, in the form of social work, in the form of professional men and women working in the organization, sir, on your side, sir. sir. सर, अच्छा सर, इस सवाल से जाने से पहले मैं थोड़ा सा ये भी बता दूं कि सर पर्सनल ब्रांडिंग का मतलब ये बिल्कुल हरगिज़ नहीं है। यहाँ पे कुछ लोग सेशंस के अंदर से इस चीज को इस तरह से ले जाते हैं कि वो ये समझते हैं कि हमने सारा काम छोड़ देना है, जॉब्स छोड़ देनी है, बस हमें अपना ब्रांड बनाना है और उसको लॉन्च करना है। पर्सनल ब्रांडिंग का हरगिज़ ये मतलब नहीं है। पर्सनल ब्रांडिंग का मतलब मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप चाहे जॉब कर रहे हैं, चाहे स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप एंटरप्रेन्योर, आप कुछ भी हैं, लेकिन आपकी एक शिनाख्त होनी चाहिए। सर का सवाल बड़ा मजे का है। सर बात यह है कि थोड़ा सा इस सवाल से हटके मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। वो ये है कि सर व्हाई आर वी हियर, हम यहाँ पे क्यों हैं? लाइक मैं आज आपके सामने क्यों हूँ, आज आप मेरे सामने क्यों हैं, आज आप आईबीए में क्यों हैं, ये बच्चे अपने अपने इदारों में क्यों हैं, ये सारे बच्चे अपने शहर में क्यों हैं, ये सारे बच्चे या हम सब इस दुनिया में क्यों हैं? सो व्हाई आर वी हियर? इसके पीछे कुछ ना कुछ तो है जिसकी वजह से हम यहाँ पे हैं। अब लोग अब क्या करें? फॉर एग्जाम्पल अगर आईबीए के बच्चे हैं, सक्खर के अंदर पढ़ रहे हैं, तो अब एक बड़ी यहाँ पे और भी यूनिवर्सिटीज होंगी, और भी इदारे होंगे, तो अगर इनके पास टाइम हो बच्चों के पास, तो ये जस्ट विजिट करें एक ऐसा हॉस्पिटल जहां पे ये कुछ कंट्रीब्यूट करके वहां पे जाके किसी वार्ड के अंदर उन लोगों को कुछ मेडिसिन लेके दें, उन लोगों को कुछ फ्रूट या कुछ खाने पीने की चीजें दें। तो वहां पे क्या होगा? सर, वहां पे ये होगा कि आपने सोसाइटी को जाके अपना पार्ट प्ले कर दिया। अब वहां पे जितने लोग हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हो, चाहे वो पेशेंट्स हो, चाहे वो पेशेंट के साथ अटेंडेंट्स हो, जो भी लोग हों, वो जरूर आपका जिक्र करेंगे कि भाई आईबीए के बच्चे आज आके उन्होंने एक यहाँ पे इस तरह की चीज की है। तो आईबीए का जो एक ब्रांड है, बहुत पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के साथ मार्केट में जाएगा। फिर जब बच्चों का इंटरेक्शन होगा लोगों के साथ, तो वो लोग उनके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आप किस एरिया से बिलोंग करते हैं। तो आईबीए के अंदर बड़ी जबरदस्ती चीज है कि वहां पे बड़ी डाइवर्सिफिकेशन है, ऑल ओवर दी कंट्री लोग आते हैं, तो वहां पे आपको मौका मिलेगा कि आप अपना ब्रांड बताओ। आई फ्रॉम गिलगित, आई एम फ्रॉम रावलपिंडी, आई एम फ्रॉम वेरी रिमोट इंटीरियर सीन और केपीके और वट एवर, आप जहां से भी हैं, तो वहां पे आपको अपना एक मौका मिलेगा अपना ब्रांड को वहां पे प्रेजेंट करने के लिए। फिर बड़ी जबरदस्ती चीज सर, ये वो चीजें जो मैंने की है, एक बड़ी जबरदस्ती चीज सर आपको वहां पे मिलेगी। वहां पे लोगों को जो आपको उनके चेहरों के ऊपर जो खुशी मिलेगी, जो उनके चेहरों के ऊपर जो आपको एक मुस्कुराहट मिलेगी या एक आपको जो दुआएं मिलेंगी, वो आपको उठा के ऐसा रख देंगे कि आप सोच ही नहीं सकते। ये एक छोटी सी एक्सरसाइज है, एक ब्रांडिंग की, सेल्फ ब्रांडिंग की। आपकी सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी उससे आप बड़ा सेटिस्फाई हो जाते हो, आपको खुशी भी मिलती है, आपने अपने इदारे को भी अच्छा प्रेजेंट कर दिया, आपने अपने आप को भी अच्छा प्रेजेंट कर दिया, अपनी फैमिली को भी अच्छा प्रेजेंट कर दिया। सो नाउ यू आर इन द प्रोसेस ऑफ सेल्फ ब्रांडिंग। सो इसी तरह जब आप किसी इदारे में जॉब करते हो, आपकी क्वेश्चन की जानिब सर मैं आना चाहूंगा, तो वहां पे आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे टीचर्स होते हैं जिनसे बच्चे बड़े मानूस होते हैं। वो जो क्या करते हैं, वो ये होता है कि स्टडी के अलावा भी अपने पर्सनल इश्यूज भी उनके साथ डिस्कस कर रहे होते हैं, पर्सनल प्रॉब्लम्स भी उनके साथ डिस्कस कर रहे होते हैं, और उनसे बड़ा ये एक रिस्पेक्टेबल रिलेशन होता है उन टीचर के साथ। वो टीचर जो होते हैं अपनी पर्सनालिटी में क्लास के अंदर ऐसी कशिश पैदा कर देते हैं स्टूडेंट के साथ कि वो उनका रिलेशन डेवलप करने में कामयाब हो जाते हैं। इसी तरह ही हमारे इदारों के अंदर जब हम जॉब कर रहे होते हैं, चाहे वो बच्ची हो चाहे वो बच्चा हो, जो भी जॉब कर रहे होते हैं, वहां पे आपने अपनी पर्सनालिटी को इस तरह से प्रेजेंट करना है कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हों।
वेरी पॉजिटिव साइड के आप अट्रैक्ट होने का मतलब बिल्कुल वो नहीं है जो अगर आपके माइंड में कुछ परसेप्शन गलत क्रिएट हो, पर अट्रैक्ट होने का मतलब ये है कि आप वहां पे अपने आप को अच्छे तरीके से प्रेजेंट करके अपना एक ब्रांड प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो उससे क्या होता है कि लोग आपके पास आते हैं, आपसे बात करने की कोशिश करते हैं। और सर ने एक बड़ी जबरदस्त सर ने बात की कि बाज दफा क्या होता है सर कि कैसे पता चले ब्रांड का, या इसमें सर ने कोई सवाल किया था। देखें, जब तक कहते हैं कि वो जब तक हम बातचीत नहीं करते ना किसी महफिल के अंदर से, तो ना हमारी ड्रेसिंग बात कर रही होती है। अभी मैं वजह से बात कर रहा था कि ड्रेसिंग का मतलब हर किस ये नहीं है कि कल आप जाएं और अच्छे अच्छे ब्रांड्स ले लें और कहें कि सर ने जो है ना बात की थी ड्रेसिंग की। ड्रेसिंग का मतलब ये है कि आप ऐसी कलर स्कीम, आप एक ऐसा बड़ा एक रिस्पेक्ट वाली ड्रेसिंग करें कि लोग जब तक आप बातचीत न करें तो लोग एटलीस्ट ये परेशान जरूर हो वहां पे कि ये साहब करते क्या हैं, ये जो साहब हैं ये इनका बैकग्राउंड क्या है। लोग आपके बारे में वहां पे थोड़ा सा तजब्बुब या रिलेक्टेंट हो, थोड़ा सा इसका शिकार हो कि बेसिकली इनसे आपसे बात करने की कोशिश करें। अब वो कैसे होगा? देखें, वो ये है कि आपको अपनी सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर काम करना होगा। सेकेंडली, आपको अपना स्टाइल बनाना होगा, आपको अपना एक एक ब्रांड का इमेज। देखिए, हर ब्रांड की एक पैकेजिंग होती है ना, हर ब्रांड का वो बड़ी मजे का ब्रांड पावर होती है ना। लाइक मैं यहाँ पे अगर कोरियर का नाम लूँ ना, कभी जितने भी लोग बैठे शायद टीसीएस का नाम लें, शायद वो किसी और कंपनी का नाम लें, तो आप भी अपना वहां पे एक ऐसा स्टाइल पेश करें। अब जब मैं जाता हूं तो लोग सिकंदर की बात करते हैं, जो मुझे मेरे मेरे सर्कल में जानते हैं, वो कहते हैं वो सिकंदर जिनके बाल नहीं है। तो मैं इसको बड़ा मजे का लेता हूँ, मुझे बड़ी खुशी होती है कि मेरा एक जो यूनिकनेस है या मेरा ब्रांड इमेज है वो लोगों के अंदर, माइंड के अंदर बैठा हुआ है। इसी तरह ही वो जो साहब हैं, वो जो साहिबा हैं, किसी महफिल में या कहीं पे गए हुए हैं, तो वहां पे वो कोशिश करें कि अपने यूनिक वे ऑफ सिटिंग, अपने बैठने के स्टाइल से या अपने एक अपीयरेंस के अंदर लोगों को मुतासिर करें। और जब आप बात करें, जब वहां पे आप जितनी गुफ्तगू करें, तो कोशिश करें कि आप अपने आप को खुद डिफाइन करें, इससे पहले कि लोग आपको डिफाइन करें। इससे पहले कि लोग आपके बारे में पूछें, आप अपने आप को इस तरह उस महफिल में, इस तरह उस गैदरिंग के अंदर बात स्टार्ट करें कि आप अपना मैसेज भी कन्वे कर दें, आप अपने आप की पर्सनालिटी भी बता दें, आप अपने आप के बारे में भी बता दें, और आप ऐसे सवाल लोगों के माइंड के अंदर छोड़ दें जिनको वो पूछने के लिए उठने के बाद भी आपसे कांटेक्ट करें। तो ये सर जो है कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से आपकी पर्सनल ब्रांडिंग के अंदर बड़ी इफेक्टिवनेस आती है। सर बिल्कुल सही फरमाया सर। आपने काफी इसके ऊपर एम्फेसिस किया है अबाउट द कम्युनिकेशन व्हेन यू आर इंटरेक्टिंग विद द सोसाइटी आर सम कंसर्न वेयर यू आर एक्चुअली इंटेंडेड टू बिल्ड योर ब्रांड। तो सर कम्युनिकेशन जो है, नॉर्मली एक जनरल परसेप्शन है कि कम्युनिकेशन इज समथिंग अबाउट योर फ्लुएंसी इन इंग्लिश एंड हाउ वुड यू से, हाउ वुड यू एडवाइज अस कि कम्युनिकेशन टोन किस तरह होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्टाइल किस तरह होना चाहिए व्हेन यू आर एक्चुअली फोकसिंग ऑन बिल्डिंग योर ब्रांड सर? सर कम्युनिकेशन जो है सर, बहुत बड़ा इसका रोल है सर हमारी पर्सनल ब्रांडिंग के अंदर भी, और बहुत बड़ा इसका रोल है हमारे डेली मामलात के अंदर भी। देखिए, एक अच्छा कम्युनिकेटर वो नहीं होता, मेरी नजर, मेरी नाचीज राय के अंदर, एक अच्छा कम्युनिकेटर वो नहीं होता जिसको अच्छी इंग्लिश आती हो। लोग नॉर्मली परसेप्शन क्या होती है हमारे बच्चों के बीच या हमारे लोगों के बीच के, आप बहुत अच्छे इंग्लिश आना, आपको बात करना, आपका एक्सेंट ब्रिटिश हो, आप जो भी आपका एक्सेंट होना बहुत अच्छी बात है, उसको डेवलप करना बहुत अच्छी बात है। लेकिन कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि एक बंदे को बहुत अच्छी इंग्लिश आती है तो वो बहुत अच्छा कम्युनिकेटर है। ऐसा नहीं होता। बाज दफा ये होता है कि आप बहुत जबरदस्त किस्म की टॉक सुन रहे होते हो और आपके माइंड के अंदर उसका असर नहीं होता। और बाज दफा ये होता है कि बड़ी आसान सादा अल्फाज के अंदर कोई शख्स बात करता है और आपके माइंड के अंदर उसका देर तक असर रहता है। अच्छी कम्युनिकेशन वो है सर, जो आप जब कम्युनिकेट करते हो तो लोगों को उसका मतलब समझ आए, लोगों की उसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो, लोग उसको आपकी कम्युनिकेशन से अट्रैक्ट हो और आपको अपना हिस्सा माने, आपको अपनी अपनी जात का, अपने अपने सर्कल का हिस्सा मानना जब शुरू कर दें, मैं समझता हूँ अच्छा कम्युनिकेटर बहुत है। और अच्छी कम्युनिकेशन सर मेरी नजर में वो है कि जब आप उसमें वेव्स की तरह बात करते हैं, आपकी साउंड, आपकी पिच, आपका एक्सेंट के साथ आपकी वेव्स होती हैं। लाइक कि आप वेव्स की तरह कभी ऊपर चले जाते हैं, अपने टोन को ऊपर लेके जाते हैं, कभी अपनी टोन को नीचे लेके आ जाते हैं, कभी आप बिल्कुल स्ट्रेट चलते हैं।
तो उससे क्या होता है कि आपकी, वो कहते हैं ना कि बंदे की जुबान के अंदर तासीर होती है, लोग उसकी बात बड़ा सुनते हैं। वो इसलिए कि वो इस स्ट्रेटजी को डिजाइन करता है अपने, जब उसने की होती है कि वो बात इस तरह से करता है कि सर वो जो उसमें वेव्स होते हैं, वो वेव्स उस बातचीत को असल में उठा रहे होते हैं। वो बात जो भी जिस लेवल की भी हो, लेकिन उसका वो जो स्टाइल होता है ना, उससे क्या होता है, लोग मुतासिर होते हैं और लोगों को बात समझने में या लोगों को बात सुनने में बड़ा मजा आता है। तो अच्छा कम्युनिकेटर, आप मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी डेवलप करें। लाइक के सीधी सी बात है, आज से 10 साल पहले, या मैं अपना बताऊं सर, टू बी वेरी फ्रेंकली, मैं तो शायद बिल्कुल पता ही नहीं होता था कि भाई उर्दू कैसे बोलनी है, आपको इंग्लिश कैसी बोलनी है, आपको कपड़े कौन से पहनने हैं। वी डोंट नो हाउ टू मेक नॉट कैसे बनाना है अपने टाई का, आपने चीजें कैसे करनी है। बट वो क्या है, उसमें जो अरसा लगा हमें सीखने में, वो हमारी यूनिवर्सिटी में हमें टीचर्स ने बताया कि हमने आगे जाके प्रोफेशनल जो हमारे दोस्त थे, जो लोग थे, उनसे हमने सीखा। तो कम्युनिकेशन आप अपनी बेहतर करें। और कम्युनिकेशन में मैं समझता हूँ सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है ना सर, जो मैं समझता हूँ कम्युनिकेशन मतलब वो लिसनिंग है। और जितना हम सुनते हैं, या जितना हम सुनते हैं उतना अच्छा हम बोल भी सकते हैं। और अगर ये हो कि भाई मेरा पर्सनल ब्रांड है और मैं कहीं नई महफिल में बैठा हूँ और सिर्फ मैं ही बोलना शुरू कर दूं और किसी को मौका ही ना दूं, तो वो कहते हैं कि पर्सनल ब्रांड सम टाइम आपको जो है वो खराब भी बहुत ज्यादा कर देता है। अब फॉर एग्जांपल, अब मैं एक चीज, अब एक एक्टिविटी करते हैं, मैं आपको कहूंगा कि आप फिर अपनी चंद सेकंड के लिए आंखें बंद करें। और एक्टिविटी ये है कि मैं आपके सामने कुछ चीजों का नाम लूंगा और फौरन आपके माइंड के अंदर ना वो इमेज आ जाएगा। अब वो मैं प्रोडक्ट का भी बताऊंगा और पर्सनल ब्रांडिंग का भी बताऊंगा। बेसिकली एक्टिविटी कराने का मकसद ये है कि पर्सनल ब्रांडिंग आपको उठाती भी है और पर्सनल ब्रांडिंग आपको गिराती भी है। तो आंखें सर बंद कीजिए और सबसे पहले मैं बात करूंगा एक उसकी ब्रांड की, प्रोडक्ट ब्रांडिंग की बात करते हैं सर। और प्रोडक्ट ब्रांडिंग अंदर मैं, जी, प्रोडक्ट ब्रांडिंग अंदर मैं बात करूंगा सर लाइफ बॉय की। तो यकीनन आपके माइंड के अंदर सौंप आया होगा, बड़ा जादू है, बड़ी मजे की एक्टिविटी है। अगर मैं बात करूं सर सर्फ एक्सेल की, तो आपके माइंड के अंदर कुछ ना कुछ आया होगा। मैं बात करूं ब्लू बैंड की, मैं बात करूं सनलाइट की, वॉल्स की, आपके अंदर प्रोडक्ट की इमेज माइंड के अंदर आए होंगे। अब मैं बात करता हूं पर्सनल ब्रांडिंग की, मैं बात करता हूं सर कायदे आजम की, मैं बात करता हूं नुसरत फतेह अली खान की। आपके माइंड के अंदर एक ही नुसरत फतेह अली खान साहब आए होंगे, एक ही कायदे आजम आए होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि 10-15 हो और आप उसमें शॉर्ट लिस्ट कर रहे हो। मैं बात करता हूं आपके सामने जुनैद जमशेद साहब की, मैं बात करता हूं आपके सामने ईदी साहब की। आपके माइंड के अंदर एक ही ईदी साहब आए होंगे, अभी उनके बेटे भी हैं, लेकिन आपके माइंड के अंदर ईदी साहब आए होंगे वो जो वफात पा गए। अब मैं आपके बात करता हूं आपके माइंड के अंदर फवाद खान की, ठीक है। और अब मैं बात करता हूं सर गुल्लू भट्ट की। माइंड में कुछ है सर? अब देखें, एक साइड पे मैंने पर्सनल ब्रांडिंग की बात की, फवाद खान जिसने अपना आखिरी एड मेरी उसमें सोच में इसने आखिरी एड किया था सुजुकी मानो के साथ ग्रैंड विटारा का। और वो जो गाड़ी है सर, वो आप सब अपनी आंखें खोल सकते हैं। एक्टिविटी मेरे ख्याल से यहाँ पे खत्म हो गई, मैं थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा था। वो जो जो सर उन्होंने गाड़ी के साथ ऐड किया था, वो ऐड सर उन्होंने किया था, कोई गाड़ी थी उस वक्त 4.5 मिलियन की, और उन्होंने उसको गाड़ी गिफ्ट की थी पाक सुजुकी वालों ने। जो मेरी इंफॉर्मेशन है कि आप इस गाड़ी के साथ अपनी, वो उन्होंने जो ऐड बनाया, जो भी किया। अब एक ब्रांड तो ये है कि वो 4.5 मिलियन में सेल हो रहे हैं, और दूसरी तरफ मैंने बात की गुल्लू भट्ट की। अब गुल्लू भट्ट भी एक ब्रांड है, बहुत सारे लोग उसके ऊपर मुस्कुराए होंगे। और जब वो स्ट्राइक हुई थी और लोग निकले थे और गुल्लू भट्ट ने गाड़ियां तोड़ दी थी और आग लगा दी थी, अब वो भी एक पर्सनल ब्रांड है मेरी नजर में। और एक पर्सनल ब्रांड ईदी साहब है, एक पर्सनल ब्रांड जो है वो फवाद है, एक पर्सनल ब्रांड, इस तरह बेशुमार ऐसी शख्सियात हैं जिनका मैं यहाँ पे शायद नाम लूं तो इतना वक्त नहीं है। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि पर्सनल ब्रांडिंग के अंदर हमने अपने आप को वहां लेके जाना है जहां पे मैंने लोगों के नाम लिए, या मैंने वहां लेके जाना है जहां पे सेल्फ डिस्ट्रक्शन है, जहां पे तबाही है, जहां पे ये इमेज है। सो ये जो पर्सनल ब्रांडिंग है, ये जो सेल्फ ब्रांडिंग है, जिसको हम, ये बेसिकली सर ये आपको उठाती भी है, मैं वही बात कर रहा हूँ, और आपको गिराती भी है। एंड इट्स अप टू यू, ये हमारे ऊपर है कि हम अपनी उस ब्रांडिंग को किस तरह से कैश करवाते हैं। कम्युनिकेशन के ऊपर मैं उसको आखिर में लिंक कर दूं। आप जब अच्छी टॉक करते हो, आप
आप लोगों को मुतासिर करते हो, और आप अगर वहीं पे जाके आप इस किस्म की टॉक करते हो कि लोग आपको आप लोग आपके बारे में नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं, तो इट्स अप टू यू, इट्स अप टू, ये हमारे ऊपर है कि हम अपना पर्सनल ब्रांड और किस तरह से कैश करवाते हैं। बिल्कुल सही है आपने कहा सर, ये दैट इज अबाउट अवर अप्रोचेस कि हम पॉजिटिव अप्रोच को सिलेक्ट करते हैं और इमेज किस तरीके से हम बेसिकली मार्केट में हम अपना बिल्ड करते हैं, वेदर इट इज अ पॉजिटिव। ग्लूबर्ट का भी आपने बताया, दैट्स वंडरफुल पार्ट सर। सर इसका कहीं रोल, लाइक हाउ मच रोल ऑफ सोशल मीडिया is there to support or uplift your image into the market sir, उसके बारे में थोड़ा सा सर हमें गाइड करें इसके हवाले से। सर सोशल मीडिया तो उसका पॉजिटिव रोल भी है और नेगेटिव रोल भी है। सोशल मीडिया या आप डिजिटल मार्केटिंग बोलें या सोशल मीडिया की हम बात करें, इट्स जस्ट लाइक अ नाइफ। ये एक ऐसे चाकू की तरह है जिससे आप फायदा भी ले सकते हो, जिससे आप नुकसान भी ले सकते हो, जिससे आप सब्जी भी काट सकते हो, जिससे आप किसी को नुकसान भी पहुंचा सकते हो। सोशल मीडिया एक ऐसी चीज है। और सोशल मीडिया अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अब बहुत सारी चीजें मैं देखता हूँ, बहुत सारे, मैं वही बात करूंगा कि आप माशाल्लाह बहुत अच्छे, आप लोग सब जगह से हैं, तो आप डेफिनेटली आप लिंक्डइन के ऊपर प्रोफाइल्स भी होंगे, आप लोग उसको यूटिलाइज भी करते होंगे, वहां से जॉब्स भी लेते होंगे। और अगर हम आप किसी तरह पर्सनल प्रोफाइल देखें फेसबुक के ऊपर, हम इंस्टाग्राम के ऊपर या व्हाट्सएप के ऊपर प्रॉपर स्टेटस देखें अपने, तो वहां पे क्या होता है कि लाइक फॉर एग्जांपल मेरे सर्कल के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, सेलिब्रिटीज भी हैं, ट्रेनर्स भी हैं, पाकिस्तान के बड़े नामवर लोग हैं, और मैं अपने स्टेटस इस किस्म के डाल रहा हूँ व्हाट्सएप के ऊपर, तो वहां से क्या होगा, मेरा पर्सनल ब्रांड जो है बड़ा मुतासिर होगा, उसका बड़ा इम्पैक्ट है। और अगर मैं इस किस्म की चीजें डालूंगा, जैसे कल आज हमारा सर यहाँ पे इवेंट है, और कल सर ने, मैं देखा कि कल ने सर ने वो मेरे ब्राउचर स्टेटस पे लगाए हुए थे, या मैं अक्सर सर के वो स्टेटस देखता हूँ, तो वहां से मुझे एक फीलिंग आती है कि ये जो साहब हैं लर्निंग की तरफ हैं, इनका बड़ा इंटरेस्ट है, इनके एप्टीट्यूड ट्रेनिंग के अंदर है, इनको बड़ा शौक है। तो वो क्या होता है, हमारी एक परसेप्शन क्रिएट हो जाती है। इसी तरह सोशल मीडिया के ऊपर जो हम पोस्ट डालते हैं, आप सोशल मीडिया के ऊपर जरूर चीजें डालें, अपनी पर्सनल पिक्चर्स भी डालें, मैं भी डालता हूँ। आप जो इवेंट्स कर रहे हैं या जिन इवेंट्स में गए वो भी डालें, बट उसके साथ साथ कुछ ना कुछ एक ऐसी चीज हो जो लोगों में यूनिकनेस हो, आपका प्रोफाइल और उनका प्रोफाइल देख के एक क्लियर एक डिफरेंस नजर आए कि ये जो साहब हैं ये यहाँ से ग्रेजुएट हैं, इनकी थिंकिंग, इनकी परसेप्शन, इनके माइंड के अंदर जो चीजें हैं वो ये हैं, और ये जो साहब हैं या ये जो साहब हैं इनका प्रोफाइल। तो मैं जस्ट प्रोफाइल देख के, डीपी देख के, सर इतना एक्सपीरियंस हो गया, डीपी देख के अंदाजा लगा लेता हूँ कि बंदे का माइंड में एक्चुअली चल क्या रहा है। तो यहाँ तक लोग जो है उस चीज को देखते हैं, एनालाइज करते हैं। मैं सर यहाँ पे आपको एक रेसिपी बताना चाहूंगा कि हाउ टू ब्रांड योरसेल्फ इन 6 और 7 स्टेप, जो मैंने अपनी जाती मुशाहिदे से या जाती तज्जिये से, मेरी नाचीज राय के अंदर जो चीज है वो मैं सर आपको यहाँ पे जरूर बताना चाहूंगा। देखिए सबसे पहले अब सवाल यह है कि हाउ टू ब्रांड योरसेल्फ इन 6 और 7 स्टेप। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है वही बात है कि व्हाट एक्साइट्स यू, आपको कौन सी चीज एक्साइट करती है, आपकी चीज में एक्साइटेड हैं उसको करने में। वो चीज पॉजिटिव भी होती है, वो चीज नेगेटिव भी होती है। अगर आप पॉजिटिव देख लें कि आपको फॉर एग्जांपल पब्लिक स्पीकिंग के अंदर आपको इंटरेस्ट है और आप पब्लिक स्पीकर्स को सुनना शुरू कर देते हैं और उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करके अपने आप को वही अपने लोगों में जाकर रिप्रेजेंट करना शुरू करते हैं, तो आपका पर्सनल ब्रांड बनना शुरू हो जाता है। सेकंड स्टेप इसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये है कि सोशल नेटवर्किंग। सोशल नेटवर्किंग के अंदर बिल्कुल हरगिज़ मतलब मेरा ये नहीं है कि सिर्फ फेसबुक, सिर्फ इंस्टाग्राम, सिर्फ व्हाट्सएप, इसके साथ साथ आपकी अपनी वेबसाइट भी होंगी। मेरी वेबसाइट अभी कुछ डाउन है, उसका डोमेन की इश्यूज है, तो कुछ दिनों में आपको मैं उसको सर लिंक सेंड करूंगा, आप जरूर उसको विजिट कीजिएगा। आपकी अपनी एक वेबसाइट होनी चाहिए जहां पे आप आपके बारे में एक इमेज हो, आपके प्रोफाइल के अंदर एक वेबसाइट का लिंक मौजूद हो। कोई अगर आपके बारे में जानना चाहता है या आप अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाहते हो किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो जस्ट वो एक क्लिक के ऊपर आपको देख ले। आप मुझसे ये पूछेंगे सर हम उस प्रोफाइल, उस वेबसाइट के अंदर हम क्या डालें, क्या लिखें? उस वेबसाइट के अंदर आप अपनी इंट्रोडक्शन लिखें कि भाई ये मेरा इंट्रोडक्शन है, ये मेरी स्किल्स हैं, इन चीजों के ऊपर मैंने ड्यूरिंग स्टडी इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया है, इन असाइनमेंट्स के ऊपर मैंने काम कर चुका हूँ, ये मेरी एक्सपर्टीज है, ये चीजें मैं कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। वहां पे आपके कॉन्टेक्ट्स हो। एक सिंपल सी आपकी जो
एक इमेज है वहां पे, उस वेबसाइट के ऊपर एक अच्छी अच्छी इमेजेस होनी चाहिए वहां पे, और वहां से आपको लोग आपको जानना शुरू कर देंगे। तो आपका पहले आपको एक्साइट क्या करता है, दूसरा आपके जो सोशल मीडिया, जो सर ने बात की उसको मैं लिंक कर रहा हूँ कि आपको मैनेज करना चाहिए, हाउ टू मैनेज योर सोशल मीडिया अकाउंट्स, कि आप किस तरह से उसको मैनेज कर रहे हो, किस तरह से उसके ऊपर जो आप अपना डेटा डाल रहे हो, जो चीजें आप अपलोड कर रहे हो वो किस किस्म की हैं, आपको ब्रांड को किस तरह से इफेक्ट करती हैं। तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज जो इस स्टेप के अंदर मैं ये समझता हूँ आजकल के दौर के अंदर जो हम सब में होनी चाहिए बशमूल मेरे, वो है मीडिया ट्रेनिंग्स। और मीडिया ट्रेनिंग्स क्या है? मीडिया ट्रेनिंग्स मेरे हिसाब से ये हैं कि आपको पब्लिक स्पीकिंग आनी चाहिए। आईबीए के अंदर मोस्टली पाकिस्तान के बड़े अच्छे अच्छे चैनल्स विजिट करते होंगे, आप जाके उनको अपने इंटरव्यूज करें, आप जाके उनको फीडबैक दें। बहुत सारे मैंने देखा होता है बच्चे जब वो एंकर आते हैं और वो माइक लेके खड़े होते हैं, बहुत सारे बच्चे पहुंचे होते हैं वहां पे, कोई बच्ची या बच्चा बात कर रहा होता है, तो बहुत सारे लोगों के अंदर ख्वाहिश होती है कि मैं भी टीवी के ऊपर आऊं, मैं भी बात करूं, बट वो अंदर से हेजिटेट हो रहे होते हैं कि नहीं मैं बात कैसे करूंगा, मैं उसको कैसे मैं अपने आप को रिप्रेजेंट करूंगा, बड़ी एक उनके अंदर शर्मा रहे होते हैं, खासतौर पे बच्चे बच्चियां। तो आपको बेसिक टिप्स आनी चाहिए कि आपने अपने आप को उस मौके को कैश कैसे करना है। आप फॉर एग्जांपल गए, आपने वो बोलते हैं कि अगर किसी को फीडबैक आप देना चाहें तो हमारे पास आ जाएं, हम सेशन के एंड के ऊपर यहाँ पे मौजूद होंगे। आप उसको कैश करें, आप जाएं, आप अपने 30 सेकंड के अंदर 20 सेकंड के अंदर जाके मैसेज दें, और फिर शाम को उस वहां से उसको कांटेक्ट ले लें, उनको कहें सर मुझे ये व्हाट्सएप कर दे, या मुझे बताएं सर किस वक्त किस न्यूज हेडलाइन के अंदर आप इसको लेके आएंगे। वहां से उसको उठाएं, अपने सोशल मीडिया के ऊपर डालें, तो आपका एक बड़ा देखें आपको कितने वहां पे सोशल मीडिया लाइक्स मिलते हैं, और किस तरह आपको आप एक अपने आप को एक प्रोसेस के अंदर डाल के आते हो कि आपका एक ब्रांड बनना शुरू हो जाता है। तो मीडिया ट्रेनिंग इस तरह से आप कर सकते हो। मीडिया ट्रेनिंग के अंदर आप ये होता है कि अगर आप कैमरे से सामने से हेजिटेट करते हो, आप बातचीत नहीं कर सकते, तो आप कोशिश करें अपने लिंक्स के अंदर, यूनिवर्सिटीज के अंदर या बाहर जाके आप एफएम रेडियो स्टेशन के ऊपर जाके आप अपने इंटरव्यूज करवाएं और कांटेक्ट ढूंढें, और वहां पे जाके आप कैमरा तो नहीं होता, आप माइक के सामने बैठ के बात करते हो, तो वहां से आपके अंदर एक ब्रांडिंग वाली फीलिंग्स आती हैं कि आपको लोग गाड़ियों में भी सुन रहे होंगे, आपको खवातीन घरों में भी सुन रहे होंगे, आपको मर्द हजरात काम करते हुए भी शायद सुन रहे हो, जो लेबर वर्क होती है वो अक्सर हेडफोन लगा के ये चीजें करके हैंड फ्री लगा के सुन रहे होते हैं एफएम। तो वहां पे आप अपने आप को कैश कर सकते हो। तो आपको एक स्टेप मिल गया पहले एफएम का, और वहां से उसके बाद आप अपने कैमरा वर्क की तरफ जा सकते हो, फिर आप अपनी वीडियोस बना के यूट्यूब के ऊपर डाल सकते हो या सोशल मीडिया के ऊपर, जो भी आप कर सकते हो। तो तीसरा स्टेप सर ये है कुछ रेसिपी के अंदर कि आपको मीडिया ट्रेनिंग्स आनी चाहिए। एंड द फोर्थ वो है मीडिया इंटरव्यूज, मैंने उसको जिक्र कर दिया, उसमें टीवी रेडियो ऑनलाइन मीडिया ये जो हम कर रहे हैं, ये उसका चौथा स्टेप है। लेकिन इससे पहले आपको ये मीडिया ट्रेनिंग्स या मीडिया के ऊपर आपको आने के टिप्स आने चाहिए। और जो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है सर, वो है स्पीकिंग एंगेजमेंट। फजात ने शुरू में एक सवाल किया था, वो ये किया था कि सर मैं रिलेक्टेंट होता हूँ अपने आप को बताने से पहले, लोगों में अपने आप को इंट्रोड्यूस कराने में बड़ा रिलेक्टेंट होता हूँ। देखिए वजाहत, मैं ये कहूंगा कि स्टार्ट बाय डिस्क्राइबिंग योर पर्सनालिटी एज समवन एल्स वुड डिस्क्राइब यू, कि आप अपने आप को अच्छे तरीके से बता दें, इससे बेहतर ये है कि कोई आपका तारीफ करा दे। ये बड़ी एक छोटी सर एक एग्जांपल है। मैं एक दोस्त के साथ गया और वहां पे उनके कुछ प्रोफेशनल्स वहां पे उनकी गैदरिंग थी, आए हुए थे। तो मेरे उन दोस्त ने, मैंने सलाम किया और मेरे बारे में उन्होंने मुझे सही तरीके से इंट्रोड्यूस नहीं करवाया, और उन्होंने मेरा जो इंट्रोडक्शन करवाया वो मेरी फील्ड से बिल्कुल रिलेटेड नहीं था। और क्योंकि मैं एक एफएम के साथ आरजे भी रहा हूँ, तो वहां पे उन्होंने मुझे बोल दिया कि ये साहब आरजे हैं, जबकि मैं चाह रहा था मैं इस चीज को नहीं बताऊं वहां पे। मैं चाह रहा था कि मैं अपने आप को एज ए कॉर्पोरेट ट्रेनर इंट्रोड्यूस करवाऊं, सॉफ्ट स्किल्स के हवाले से या दूसरी चीजों के हवाले से, ताकि मेरा प्रोफेशनल एक लिंक डेवलप हो और मैं वहां से कुछ अपना काम कर सकूं। बट उन्होंने मुझे जैसे ही बोला कि ये साहब आरजे हैं, तो किसी ने इंटरेस्ट नहीं लिया। तो मैंने दोस्त को उस वक्त तो कुछ नहीं कहा, बाद में गाड़ी कहा कि मैंने कहा आपने मेरे सारे ब्रांड का जो है ना काम करके मतलब बड़ा गर्क कर दिया आपने मेरे ब्रांड का। ठीक है, जो मैं यहाँ से ले सकता था वो आपने सदियों मैं कोशिश करता रहूं, मैं जब भी इन लोगों को मिलूंगा वो कहेंगे ये एफएम पे आरजे और ये गाने सुनाता होगा, बट मैं वहां पे भी मैंने एक एजुकेशनल शो करता हूँ 2 घंटे का, उसमें गाने नहीं होते। तो बात यह है कि वजह अगर आप अपने आप बारे में नहीं बताते ना, तो कोई जो दूसरा बंदा है वो आपको वहां पे बता दे और उसने गलत बता दिया ना, फिर हम जितनी कोशिश करें हमें मौका नहीं मिलता कि हम अपना ब्रांड वहां पे प्रेजेंट कर सकें। सो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको मौका मिलता है वजह बात करने का, इंट्रोड्यूस करने का, तो जरूर बताइए।
वहां पे अपनी वो अचीवमेंट्स बताइए, बट वो चीजें इस तरह से बताइए कि लोग उसमें इंटरेस्ट भी लें, लोग उसको सराहें भी। ये नहीं होना चाहिए कि आप अपनी बहुत सारी चीजें ऐसी बता दो और लोग कहें तो ये तो भाई अपने आप को शो ऑफ कर रहे हैं और देखो कि वो इंटरेस्टेड भी ना हो। तो वो इस तरह से आप कम्युनिकेट करें कि लोग उसमें इंटरेस्ट भी लें और लोग आपको भी सुने। और दूसरा इसमें सर स्पीकिंग एंगेजमेंट के अंदर मैं ये बात करना चाहूंगा कि आप अपने डिफरेंट सेमिनार्स में जाएं। जो लोग बच्चे मुझे यहाँ पे सुन रहे हैं, देखिए कहीं से भी कुछ मिल जाता है, कहीं से भी कुछ मिल जाता है, कोई ऐसी बात मिल जाती है, कोई ऐसा लफ्ज मिल जाता है, कोई ऐसी लाइन मिल जाती है जो आपकी लाइफ को बदल देती है। आप मीटिंग्स में जाएं, सेमिनार अटेंड करें, कॉन्फ्रेंस अटेंड करें, वहां पे देखें, स्पीकर्स को देखें, उनकी ड्रेसिंग को देखें, वहां पे मुख्तलिफ लोगों को देखें, आपका सोशल सर्कल डेवलप होगा और आपकी स्पीकिंग एंगेजमेंट के साथ आपका ब्रांड बनना शुरू हो जाएगा। ये एक नेक्स्ट स्टेप है। इसके बाद सर एक है स्ट्रेटेजिकली बिल्डिंग एन ऑडियंस। आप अपने ऑडियंस को किस तरह से बिल्ड करते हो। एक ब्रांडिंग के अंदर, सेल्फ ब्रांडिंग के अंदर एक बड़ा जबरदस्त एक स्टेप है कि आप अपने आप के उन लोगों में, जहां पे आप लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर वजाहत पब्लिक स्पीकर बनना चाहता है, या जो भी, मैं बार बार वजाहत का नाम इसलिए ले रहा हूं कि वो शुरू से उनसे मेरा इंटरेक्शन हो गया, तो वजाहत उसको माइंड नहीं कीजिएगा, मैं वैसे ही आपको एग्जांपल की तरह। खैर एबीसी है और वो चाहते हैं कि वो पब्लिक स्पीकर बने, तो उनको चाहिए कि वो पब्लिक स्पीकर वाली गैदरिंग्स में ही जाए। ऐसा नहीं हो सकता कि मुझे स्टमक का इशू है या मुझे किडनीज का इशू है और मैं मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास जाऊं और मैं जो है या दिल कार्डियोलॉजिस्ट के पास चला जाऊं, दिल वाले डॉक्टर के पास, लेकिन मेरा इशू दूसरा है। ऐसा नहीं हो सकता। आप जहां पे उस सर्कल में अपने आप को लेके जाएं जहां पे आपका एप्टीट्यूड और जहां पे आपकी स्किल्स मैच होती हों। कहते हैं कि जो लोग होते हैं वो अपने आप से नहीं, अपने सर्कल से, अपने दोस्तों से पहचाने जाते हैं। और ऐसा ही है कि जब आप अपने स्किल्स को मैच करके उन लोगों में बैठेंगे तो आपकी ऑडियंस भी वैसी ही आपकी जनरेट होगी और वैसे ही लोग आपको मिलेंगे। सोशल मीडिया के ऊपर आप जिस तरह की पोस्ट डालेंगे, आपके पास अगर 1000 लोग ऐड हैं तो आपकी पोस्ट को सिर्फ वही लोग आपकी पोस्ट को लाइक करेंगे जो उस पोस्ट से रिलेटेड उनके माइंड में कुछ चल रहा है। कोई बंदा उदास है और उसने कोई वहां पे उदास चीज लिख दी, तो 1000 बंदा तो उदास नहीं हो सकता ना। उसमें जितने होंगे वही इसको लाइक करेंगे, बाकी उसको छोड़ देंगे। तो इस तरह ही होता है, हमारे पोस्ट के ऊपर लाइक नहीं होते, हम परेशान होते हैं कि देखो भैया मेरे इतने फ्रेंड्स हैं और देखो इसने लाइक नहीं किया, और फिर अगले दिन बता रहे होते हैं सर देखो इसने लाइक, वो इसलिए लाइक नहीं किया, वो उसका वो सोच ही नहीं रहा ना जो आप वहां पे डाल रहे हो। तो अपने आप को वहां पे लेके जाओ जहां पे आप अपने स्किल्स के मुताबिक, अपने आइडियाज के मुताबिक, अपने एप्टीट्यूड के मुताबिक ऑडियंस को जनरेट कर सकें। और सर इसके बाद सेकंड लास्ट स्टेप है पर्सनल ब्रांडिंग के अंदर, हाउ टू ब्रांड योरसेल्फ। वो ये है कि जब आप समझ जाएं कि भाई मैं ये, मेरे अंदर ये चीज है, मेरे अंदर ये स्किल्स हैं पब्लिक स्पीकिंग वाले, या मैं अच्छा रिप्रेजेंटर हो सकता हूँ, अच्छा होस्ट हो सकता हूँ, अच्छा एंकर हो सकता हूँ, अच्छा ब्रांड स्ट्रैटेजिस्ट हो सकता हूँ, अच्छा मैं फाइनेंस गुरु हो सकता हूँ, तो फिर आप जो आपके ट्रस्टेड कॉलीग हैं, जो आपके अपने हैं, जो आपको ऑनेस्ट ओपिनियन दें, उनमें जाके अपने आप को लॉन्च करें। देखिए ऑनेस्ट ओपिनियन का मतलब ये नहीं है कि आप उन लोगों में जाएं जो सिर्फ आपकी तारीफ करें। एक ऐसा हुआ कि एक साहब को मैंने ये बात की, उसने अपनी पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर सर काम किया और वो उन लोगों में उन्होंने जाके वो फीडबैक, उन्होंने क्या भाई कमाल कर दिया आपने, आप तो छा गए, इतनी तारीफें कर दी। और जब उन्होंने मार्केट में अपने आप को लॉन्च किया तो वहां पे वो बात ही नहीं कर सके। तो वहां पे तो स्टेज के ऊपर खड़े होकर परेशान हो गए। अब जिन लोगों ने उनकी तारीफें की थी, उनका फीडबैक उसको रिटर्न नहीं दिया, तो वो बेचारे का तो ब्रांड ही खराब हो गया। उसने कहा सर मैंने वो काम ही छोड़ दिया, मैं कर ही नहीं सकता वो काम क्योंकि मुझे इतनी शर्मिंदगी हुई। तो इसलिए ये है कि आपको ऑनेस्ट ओपिनियन वही दे सकते हैं जो आपके अपने होते हैं। अब हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता, हर तारीफ करने वाला जिसने आपके मुंह के ऊपर कहते हैं कि तारीफ की, उसने शायद आपको नुकसान पहुंचाया। तो उन लोगों में जाएं जो आपको ऑनेस्ट फीडबैक दें, जो आपकी पॉजिटिव नेगेटिव आपकी हर एक चीज को देखें। और वो मेरे नजर में सबसे बेहतरीन आपके टीचर हो सकते हैं क्योंकि वो आपको बड़ा जानते हैं। जो उस्ताद की नजर होती है वो शायद मैं समझता हूँ किसी माँ बाप के उस्ताद की नजर होती है ना, शायद वो आपके दोस्त उस नजर से, उस एंगल से, उस कैमरे की आंख से आपको नहीं देख सकें जो आपको टीचर और आपके पेरेंट्स देखते हैं। तो वो आपको बड़ा ऑनेस्ट ओपिनियन देते हैं। और आखिरी स्टेप ब्रांडिंग के अंदर ये है कि आप अगर समझते हैं कि आपको अच्छा फीडबैक नहीं मिला, आप समझते हैं कि आपके अंदर कुछ कमी है, मेरे अंदर कुछ कमी है, तो फिर हम अपने आप को री इन्वेंट करें। और री इन्वेंट फिर कैसे करें, वो इसी प्रोसेस को आप जाएं, आप फिर अपने देखो कि आपको कौन सी चीज एक्साइट करती है, लेकिन फिर
इस जो नेक्स्ट आप रीइन्वेंट करेंगे तो उसके अंदर आपको बहुत सारी चीजें पहले से ही आपने सीखी होंगी, आपको बड़ा फायदा पहुंचेगा, आपको दोबारा उसके ऊपर काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ अपने आप में जाके आपका एप्टीट्यूड आपने सोचना है, ढूंढना है कि ऐसी कौन सी चीज है मेरी। ये बाज़ दफा ये होता है सर कि हमें कोई चीज एक्साइट कर रही होती है लेकिन एक्चुअली वो हमारे लिए नहीं होती, ठीक है, तो हम उसके ऊपर काम कर लेते हैं, एंड पे जाके पता चलता है कि भाई ये तो चीज नहीं थी। वो रिसर्च के अंदर वही हम कर लेते हैं, एंड के ऊपर पता चलता है कि हमारे तो वो मसला आ रहा है। तो वो हम रीइन्वेंट के अंदर आप जाएं और रीइन्वेंट के अंदर जाके अपने आप को एक्सप्लोर करें तो एक अच्छा ब्रांड आपके सामने आएगा सर। That that's wonderful, sir. Now we have this is very exciting session going on. Actually, people are actually participants are very much excited to ask you, interact with you directly as well. वैसे तो आपके साथ इतने क्वेश्चन और आंसर से चलते रहेंगे तो शायद हमारे लिए टाइम बड़ा कम है, और इस वक्त मैं थोड़ा सा चाहूंगा कि मैं पार्टिसिपेंट्स को भी इंगेज सर करूं। प्लीज तो वी हैव सम क्वेश्चन फ्रॉम प्लीज सर। कैंडिडेट्स, सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट Mr. Ajay Kumar has already given a question. Mr. Ajay Kumar, I can you can unmute yourself and may ask a question directly to the Mr. Sikandar Ali Khan. Please, Ajay Kumar. सर सर प्लीज। Introduction दिया है। Ajay Kumar is from the Sakhar University, Kandakot campus, और he lives in Kandakot, और he said के जो ये जो आपने पहले डिस्कशन भी किया कि मिस्टर सिकंदर अली सेड इन स्टार्टिंग अबाउट द फाइट एंड द फ्लाइट, सो हाउ कैन वी रिस्पॉन्स इन टर्म्स ऑफ फ्लाइट इमीडिएटली। इनका कहने का मकसद ये है कि अगर हमें बाहर ही भागना है तो हम किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। so that is सर सर मतलब, and then on the other side it was मैं समझ गया on a lighter note, and now he सर said सर like how can we actually become optimistic while seeing सर different frustrating things around them. So this is a basically precise question of Mr. Ajay. सर सर बड़ा अच्छा सवाल किया सर कुमार साहब ने, बहुत जबरदस्त सवाल है। देखें सर बात यह है कि वही एक चीज मेरे माइंड के अंदर आ रही है कि आप अपना पूरा इनपुट दें। देखें आप जंग में सिपाही जाते हैं ना, वो ये सोच के नहीं जाता कि मैं जीत के आऊंगा। बात दफा ये होता है कि वो वहीं पे वो मर जाता है, उसको गोली लग जाती है या वो वहां पे उसकी डेथ हो जाती है। मैं चाहता हूं कि अगर आपने फ्लाइट ही करना है ना सर, लाइटर नोट, अगर आपने फ्लाइट ही करना है, एक ही ऑप्शन बन गया है, तो कम से कम एक ऐसा इमेज जरूर छोड़ के जाएं कि ताकि लोग उसको सदियां याद रखें कि भाई उसने फ्लाइट कर गया था, लेकिन वो उसने अपना 100% दिया था, उसने आखिरी दम तक वहां पे अपना इनपुट दिया, कोशिश की। लेकिन बाज दफा ये होता है सर कि हर इंसान के लिए एक सेम जैसी चीज नहीं होती। बाज दफा ये होता है कि हम एक ही मिसाल के तौर के ऊपर एक ही सीवी के साथ हम बहुत जगह अप्लाई कर रहे होते हैं, और हम चाहते हैं कि हमें ना एक ही सीवी के ऊपर डिफरेंट जॉब मिल जाए। ऐसा नहीं होता। बाद दफा आपको बड़ा टेक्निकली, बड़ा ही अपने आप को स्ट्रैटेजिकली आपको चलना पड़ता है, और आपको डिफरेंट प्रोफाइल बना के डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स के लिए अप्लाई करनी पड़ती हैं। इसी तरह जब फ्लाइट और फाइट की सिचुएशन होती है तो हम फोकस कर रहे होते हैं बस ये चीज हो जाए, बस मैं किसी तरीके इससे निकल जाऊं, बस किसी तरीके में इस चीज को जीत पाऊं। तो वो क्या होता है, उस वक्त हम उसके ऊपर फोकस कर रहे होते हैं। बट जो एक अच्छा रिस्पॉन्डर होता है, जो एक अच्छा सोल्जर होता है, वो हमेशा अपने आप को टेक्निकल लेके चलता है, वो उसकी चीजों की पूरी स्टडी करके चलता है। मैं अक्सर कहता हूं कि देखें हर एक्शन का ना रिएक्शन नहीं होता। हमें बचपन से एक चीज देखने को मिलती है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि भाई हर वो हमने एफएससी में पढ़ा था कि वो शायद मैं गलत न्यूटन का सेकंड और थर्ड आया कि रिएक्शन इज इक्वल टू सेम एंड अपोजिट रिएक्शन। वही चीज हमने अपनी जिंदगी में भी डाल दी है कि भाई जो एक्शन होता है वही रिएक्शन होता है। जो एक अच्छा रिस्पॉन्डर होता है ना फाइट और फ्लाइट की सिचुएशन में, वो एक्शन को रिस्पॉन्ड करता है और वो रिएक्ट नहीं करता। तो अगर आप फाइट और फ्लाइट की सिचुएशन में है तो आपने रिस्पॉन्ड करना है, और रिस्पॉन्ड और रिएक्शन में मेरी नजर में ये फर्क है कि रिस्पॉन्ड के अंदर आप टेक्निकली वर्क करते हो, आप एक स्ट्रैटेजी डिजाइन करते हो, और स्ट्रैटेजी को लेके आप जब चलते हो तो उस चीज को विन कर जाते हो, और फिर आपका लोग सदियों नाम आपका याद रखते हैं कि वो एक बंदा था या वो एक साहिबा थी जिसने ये जो है काम करके गया था। तो सर कुमार को यही सजेस्ट करूंगा, कुमार साहब के फाइट करें, और दुनिया तो वैसे ही फ्लाइट कर रही है, और फाइट करें। और फाइट में ये होता है शुरू में तो मुश्किलात नजर आती हैं, लेकिन बाद में इंसान एंजॉय करता है। शुरू में वो सिपाही जाता है, उसको टेंशन होती है, इधर से भी गोली आ रही है, उधर से भी आवाज, जहाज, धमाके हो रहे हैं, लेकिन बाद में उसे यूज्ड टू हो जाता है। तो वो कहते हैं अब धमाका नहीं हुआ तो मजा ही नहीं आता, तो फायर नहीं हुआ तो मजा ही नहीं आता। तो ये मुश्किलात तो इसलिए होती है कि हमारी लाइफ जो है ना वो बेहतरीन तरीके से चलते रहे। आप देखें सर, सबसे ज्यादा मैं आपको बताऊं, सबसे ज्यादा जो एक्सीडेंट होते हैं वो मोटरवे के ऊपर होते हैं।
क्यों होते हैं? मोटरवे एक ऐसा हाईवे जिसके ऊपर कोई जंप नहीं है, कोई इसमें खड्डा नहीं है, कुछ नहीं है, लोग आराम से ड्राइव करते हैं और जंप एक्सीडेंट हो जाते हैं। और जब आप ऐसी हाईवे के ऊपर सफर करते हो जिसके ऊपर रोड ठीक नहीं है, तो फिर आपको एक्सीडेंट नहीं होता। क्यों? आपको डर होता है कि यहाँ से भी गाड़ी बचानी है, यहाँ से भी बचानी है। तो ये जो मुश्किलात होती हैं, अप्स एंड डाउन होते हैं, ये लाइफ को इन लाइफ के अंदर अपने एक मिठास लेके आती हैं। इनका अलग मजा होता है। और जब आप चाहते हैं कि हमारी लाइफ में ये और लाइफ उनकी मजे की होती है सर जो फाइट करते हैं। फ्लाइट वाले तो वो एयरपोर्ट पे गए और निकल जाते हैं। तो मैं कुमार को ये कहूंगा कि फाइट ही करें तो एंजॉय करेंगे। एंड अगेन जिस तरह कहते हैं ना सर, व्हेन देयर इज नो पेन देयर इज नो गेन, तो ऑफ कोर्स अगर आपको Exactly, कुछ गेन करना है तो कुछ पेन लेना पड़ेगा सर। पेन तो लेना पड़ेगा सर। We have another gentleman. I would also like to request Mr. Zahoor Sumro. He is an entrepreneur from London. He is connected with us. So we have a question, Mr. Zahoor Sumro. If you can hear me, you may please ask a question from Sikandar Saab directly. Otherwise, I would quote your quoted question. He is asking a question. Personal branding is an important, but in order to achieve this, how would you say about equipping him or herself with necessary tools such as the social media? How do you see its importance? I think we already discussed on this issue. So if you want to, sir, add anything about this question, sir. सर मैं इनको थोड़ा सा इसमें अपना मजीद ऐड करना चाहूंगा कि आप अपने आप को सर वर्बली, अपने आप को विजुअली और अपने आप को इन राइटिंग अच्छा इंट्रोड्यूस करवाएं। एक चीज जो मैं इन शॉर्टली बताऊं, आप अपना इंप्रेशन क्रिएट करें, व्हाट यू डू एंड हाउ यू डू इट। लोगों को ये पता हो आप करते क्या हैं और कैसे करते हैं, एक ये चीज होगी। तीसरा, चेंज के ऊपर बात करें और परसेप्शंस क्रिएट करें बट पॉजिटिवली। चेंज वो चेंज नहीं जिसका हम बात करते हैं। चेंज का मतलब ये है कि लोग मुझे क्यों खरीदें, लोग मेरी बात क्यों सुने, लोग मुझे क्यों जॉब दें। क्यों के ऊपर अगर मैं फोकस करूं तो वो मुझे वहां से फिर चेंज आना नजर शुरू हो जाएगा कि मेरे अंदर ये चीज है, मेरे साथ जो कॉम्पिटिटर है उनके अंदर ये चीज है। तो चेंज के ऊपर बात करें और उसके बाद इन्फ्लुएंस करें, इन्फ्लुएंस पीपल सराउंडिंग योरसेल्फ, जो आपके आसपास लोग हैं। तो वहां से अगर ये सब चीजें मैं आपको समझूं कि अगर ये चीजें भी आप साथ में कर लें तो मेरे ख्याल से आपको बड़ा फायदा हो जाएगा। All right, sir. So we have another question from Wajad Beg. Wajad Beg, you are allowed to ask a question. Wajad, you may please unmute your mic. वजाद, पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिएगा ताकि पार्टिसिपेंट भी सुन सकें और फिर आप सिकंदर साहब से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वैसे तो आपका इंट्रोडक्शन सिकंदर साहब ने इतना कर दिया कि अब आप एक सेलिब्रिटी बन चुके हैं हमारे सेशन में, लर्निंग लेजेंड कोर्स में। माशाल्लाह सर, वजाद खुद एक ब्रांड बन गया सर। सो वी हैव अनदर क्वेश्चन टिल द टाइम लाइक he comes back. So we have another lady, Miss Nimrata Rani. Miss Nimrata Rani, one of the brilliant students that I know her. What if my personal brand is damaged or deteriorated or destructed, whatever he want to damage, he want to refer damage to the brand. So how to rebuild it, as you said about the reinvention of your brand. So anything lesser than the reinvention or some sort of third way out, would like to comment on सर it? बहुत जबरदस्त सवाल किया इन्होंने। और सर बात यह है कि बहुत सारी कंपनीज होती हैं अपने प्रोडक्ट को डिफरेंट सेगमेंट के अंदर इंट्रोड्यूस करवाती हैं। बाज दफा ऐसा होता है कि वो एक प्रोडक्ट बनाती हैं और किसी सेगमेंट के अंदर नाकाम हो जाता है, फेल हो जाता है। तो वो कभी ये तो नहीं किया उन्होंने कि वो जाके फैक्ट्री बंद कर दें, प्रोडक्ट बनाना ही बंद कर दें। जब भी हमारा पर्सनल ब्रांड डैमेज हो जाता है या उसको नुकसान पहुंचता है तो हम कोशिश करें कि न्यू मार्केट के अंदर जाके उसको हम इंट्रोड्यूस करवाएं। मतलब स्काई इज द लिमिट। वो कहते हैं कि ये नहीं है कि अगर एक ही मार्केट के अंदर, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं मिसाल के तौर पर आईबीएम में आता हूँ, मेरा वहां पे जो है ब्रांड डैमेज हो जाता है, तो क्या मैं अपना काम छोड़ दूंगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं कोशिश करूंगा मैं लम्स में चला जाऊं, मैं उनके कंपेटिटर को टच करना शुरू कर दूं, मैं ऐसी मार्केट में चला जाऊं जहां पे लोग ना गए हों, तो मैं अपने ब्रांड को बड़े अच्छे तरीके से बना सकता हूँ। अगर वो बड़ी खूबसूरत सी बात है, वो ये है कि हमारी वालदा कहते हैं अगर कोई आपको नुकसान पहुंचाता है तो 10 आपको दुआएं देने वाले भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका ब्रांड हर जगह ही नाकाम हो जाए, कहीं ना कहीं तो वो जरूर कामयाब होगा। बट यू हैव टू सिलेक्ट दोज सेगमेंट, यू हैव टू आइडेंटिफाई दोज मार्केट, हाउ टू टारगेट योर दैट ऑडियंस, और अपने उस सेगमेंट को में जाके अपनी पोजीशनिंग बड़े बेहतर तरीके से दोबारा करें। तो फिर क्या होता है कि उससे आपका ब्रांड जो है वो बड़ा अच्छा होता है। मैं थोड़ा सा सर अगर खुल के बात करना चाहूँ, आप मुझे इजाजत दें तो
बहुत सारी ऐसी सेलिब्रिटीज होती हैं जिनसे स्लिप ऑफ टंग हो जाता है। अगर आपने देखा हो मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, ऐसे वो कोई बयान कर रहे होते हैं, कोई चीज बता रहे होते हैं, इस्लामिकली हो या वैसे हो, तो उनसे स्लिप ऑफ टंग से कोई बात निकल जाती है, तो कुछ अरसे के बाद आपने देखा हो कि वो अपने आप को फिर उसी मार्केट में बैठ के बात कर रहे होते हैं। तो ये कैसे होता है? कहते ये हैं कि आजकल के दौर के अंदर ना वो जो लोगों की थिंकिंग है वो बड़े कम अरसे तक कोई चीज याद कर पाते हैं। बड़ी खूबसूरत सी एक बात मुझे यहाँ पे याद आ रही है कि हम किसी गवर्नमेंट को वोट करते हैं, 5 साल तक हम सेटिस्फाई नहीं होते, फिर अगले 5 साल फिर उन्हें को जाके वोट दे देते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि शायद हमें वो भूल जाते हैं। तो अपने आप को इस तरह से फिर दोबारा रिप्रेजेंट करो कि लोग आपकी उस गलती कोताही को भूल जाएं, या अपने जो ब्रांड को, जो डेंट पड़ा है गाड़ी को, तो जो ब्रांड को वो भूल जाएं। तो अपनी टारगेट सेगमेंटेशन, जो अपनी मार्केट सेगमेंटेशन है, आप उसको दोबारा आइडेंटिफाई करें, अच्छी तरीके से उसकी टारगेटिंग और पोजीशनिंग करें, तो आप बड़ा अच्छा उसको रिब्रांड कर सकते हैं। और यही बात सर, मुझे एक केस स्टडी याद आ रही है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। ये एक ब्रांड था सर, बचपन में हम पीते थे, वो हलीब एक दूध का एक ब्रांड था सर, अगर आपको याद हो। तो वो वहां पे ये था कि हमें केस स्टडी पढ़ाई गई थी, उसमें ये था कि वो उनके टेस्ट के अंदर थोड़ा फर्क आ गया था। उनका टेस्ट जो है चेंज आना, तो लोगों ने मार्केट के अंदर उनका दूध खरीदना छोड़ दिया था। तो उन्होंने क्या किया, बड़ा अर्से तक वो मार्केट में गायब रहे। तो उसी टेनर के अंदर ऑलपर्स और जो दूसरे ब्रांड्स हैं, उन्होंने मार्केट को कैप्चर कर लिया। अब दोबारा आप देखे हो कि हलीब के एड्स भी आ रहे हैं पिछले 2-3 सालों से, और वो बीच में 10-15 साल गायब रहे। अब अपने आप को एक नए उसी ब्रांड को रीब्रांडिंग कर रहे हैं। अब रीब्रांडिंग में उनको टाइम तो लगेगा, ये नहीं है कि आप सारी मार्केट ऑलपर की या दूसरे जो ब्रांड्स हैं उनकी कैप्चर कर लें, बट आपको टाइम तो लगेगा। लेकिन वो रीब्रांडिंग किस तरह से कर रहे हैं, मैं उनको कहूंगा निम्रता को कि वो जरूर उसको सर्च करें, देखें कि वो रीब्रांडिंग किस तरह से कर रहे हैं। उन्होंने अपना लोगो भी थोड़ा सा चेंज कर दिया, पैकेजिंग भी चेंज कर दी, और साथ में थोड़ी सी वैल्यू एडिशन भी कर दी कि हमारे प्रोडक्ट के अंदर, हमारे टेस्ट के अंदर, हमारी चीजों के अंदर ये चीज है। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट सा चीज है, अगर आप टाइमली अपने ब्रांड को ठीक नहीं करते, उसको रीब्रांडिंग नहीं करते, तो फिर आपको बहुत बड़ा अरसा चाहिए होता है और उसको रीब्रांडिंग के अंदर। मैं समझता हूँ अगर उस टाइम के ऊपर वो परसेप्शन को, वो परसेप्शन क्रिएट की गई थी, उसके ऊपर काम करते और रीब्रांडिंग करते, तो शायद अभी जितनी मेहनत अब कर रहे हैं उनको उतनी ना करनी पड़ती। ये जो निम्रता थी, उनको मैं यही कहूंगा कि अगर हमारे ब्रांड को, पर्सनल ब्रांड को कोई डैमेज हो ही जाते हैं, तो हम टाइमली उसके ऊपर हम एक्शन लें, टाइमली उसके ऊपर हम वर्क करें, ताकि हम उसको ठीक कर सकें। जितना मैक्सिमम टाइम लेंगे, तो लोगों की नजर में वो ब्रांड उतनी जल्दी गायब होना शुरू हो जाता है। All right, sir. Just a little addition to your point as well. जिस तरह आपने previously कहा भी कि it is very important to have a proper and true feedback from your circle enough, ताकि आपको एक true representation मिल सके. Sir, another gentleman, Mr. Wakar, is also want to ask a question. So, what about the unforeseen situation? He just want to be a little bit, concerned about the unpredictable situation, unforeseen situation that may actually either lift you up or lift you down in both the cases. So, how would you, sir, respond to this, sir? अच्छा, बड़े मजे की बात की सर। वो देखें, मैं एक जगह गया एक सेशन करने के लिए, तो वहां पे जो मेरी ऑडियंस थी ना, वो सर मोस्टली थे हमारे पठान भाई। तो वो, अब देखें, मैं वहां पे गया, वो जो कल्चर था, वो जो इंस्टीट्यूट था, वहां पे जो ऑडियंस थी, मैं मेंटली प्रिपेयर नहीं था कि वहां मेरे साथ ऐसा होगा। मैं जैसे स्टेज पे गया, तो उन्होंने शोर डालना शुरू कर दिया और मेरे ऊपर पर्सनल कमेंट्स करना शुरू कर दिए, भाई लाइक के जैसे आपको बताया कि बाल नहीं है, ये सब कुछ। वो मैंने बड़ा एंजॉय किया। देखें, एक जो अच्छा, मैं समझता हूँ पर्सनल ब्रांड जो होता है ना, वो कभी ना अपने आप को, चीजों को अपने ऊपर हावी नहीं करता। मैंने वहां पे उनके एक्सेंट के अंदर जो बेसिक टिप्स हैं, जैसे आप सिंधी में कहते हैं अले बाबा शाल है, सही है, खुश है, वो अब इस तरह जो होता है, तो मैंने पश्तो के अंदर उनसे किया। मैंने कहा अल्लाह के चरेंगे तासुपल मौसम संगेद है। तो उनको लगा कि शायद मैं पठान हूँ, तो मैंने थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन, मेरे नाम साथ भी खान है, तो वो उन्होंने मुझे ऑन करना शुरू कर दिया। पॉइंट क्या है इसमें, पॉइंट ऑफ डिस्कशन इसमें ये है कि जब आप लोगों की, उनके इंटरेस्ट के ऊपर, उनकी सोच के ऊपर, या उनके माइंड में जो चल रहा होता है, या उनके बैकग्राउंड के ऊपर जाके बात करते हो, उनकी ख्वाहिश के ऊपर, तो लोग आपके साथ जुड़ना शुरू हो जाते हैं। सियासत के अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर भी ऐसा ही होता है कि जब लोगों की नीड्स के ऊपर आप बात करते हो, तो लोग फिर आपको आपकी रैलीज के अंदर, आपके जलसों के अंदर आना शुरू कर देते हैं। ये भी एक ब्रांडिंग का हिस्सा ही है कि इलेक्शंस के दौर के अंदर लोग बेरोजगारी के ऊपर बात करते हैं। जितने बेरोजगार लोग होते हैं, वो कोशिश करते हैं कि ये गवर्नमेंट आएगी तो हमें मिलेगा। वो महंगाई के ऊपर बात करते हैं, वो बिजली के ऊपर बात करते हैं, वो उन नीड्स के ऊपर बात करते हैं।
जो लोगों की होती है, वो अपनी बात कम करते हैं, वो लोगों के नीड्स की बात ज्यादा करते हैं। सेम इसी तरह ही इस तरह की सिचुएशंस को टैकल करने के लिए एक टिप ये भी है कि आप देखें कि आपकी ऑडियंस कितने किस्म की, आपको लगता है कि मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं, तो सबकी एक आपको आइडिया हो जाता है स्टेज पे जाते हुए कि ये लोगों के माइंड में क्या चल रहा है, या जो उनके साथ आप भी मिल जाएं थोड़ा सा, तो मेरे ख्याल से वो एक अच्छा सा एक रिलैक्सिंग इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है और आप सिचुएशन को ऑन एंड ऑफ टैकल कर जाते हो। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि आप जानबूझ के छोड़ते हो उनको ऑडियंस के अंदर के, ताकि ऑडियंस इंटरेस्ट लेके आपसे सवाल लें। मैं एक शुरू में मुझे ये टिप्स नहीं थी, ये खैर मैंने खुद ही आइडेंटिफाई की सर, के मैं एक जगह गया, मुझे बड़ा डर था कि वहां से ऐसे सवाल आएंगे, तो मैंने वो स्ट्रेटेजी ऐसे की कि वहां पे अब वो सवाल तो आना शुरू हो गए, तो मैंने ना जानबूझ के अपनी बात को उसी नुक्ते के ऊपर खत्म किया जिसके ऊपर मेरी बड़ी स्ट्रेंथ थी। तो वो जो सवाल आए ना, वो उसी चीज से आए, और वो उसको मैंने बड़े अच्छे तरीके से वहां से टैकल कर लिया। तो ये सारे टिप्स अगर मैं सर इधर ही बता दूं तो आप मुझे तो आगे नहीं बुलाएंगे ना, आप कुछ रहने ही देना सर। Alright, बिल्कुल। ऑलराइट सर, दैट्स वंडरफुल। अगेन वजाद साहब काफी परेशान लग रहे हैं मुझे, इनका जो है। जी वजाद, आई होप कि आपका माइक जो है इस वक्त खराब नहीं होगा। जी Thank you वजाद। so much, sir, for giving me a chance. I'm sorry for the inconveniences. Basically, ऑफिस से कनेक्टेड हूँ और इश्यूज आ रहे थे meanwhile कनेक्शन के। पूरा सेशन मैंने सुना है अल्हम्दुलिल्लाह, और it was such a wonderful session full of learning. And sir, it was literally love. I just love that session. And just going towards a brief intro of me. This is Wajahat Beg here. I'm one of alumni of Sakkar IB University from 2014 batch, and currently working as manager finance and accounts. With this, I am a social activist and also love hosting, public speaking, and organizing different conferences and workshops for the youth development. With this, sir, I want to add one question and wanted to ask this कि बंदा टैगलाइन सर अपने ब्रांड की किस तरह डिसाइड करे, कि जिस तरह सर ने अभी कुछ दिन पहले कुछ क्वेश्चंस किए थे, कुछ ब्रांड्स के नाम लिए थे, फॉर एग्जांपल सर्फ एक्सेल, तो मेरे जहन में सबसे पहली चीज आई थी कि नाम तो अच्छे होते हैं। फिर सर ने नुसरत फतेह अली खान साहब की बात की और कायदे आजम की बात की, तो कायदे आजम के हवाले से मतलब मैं सोच रहा था कि रूल्स, रेगुलेशंस, फ्रेमवर्क, स्ट्रेटेजी, मतलब ये कुछ स्ट्रेटेजिक वर्ड्स थे जो मेरे माइंड में क्लिक हो रहे थे। तो मीनवाइल विद दिस, बंदा अपनी टैगलाइन कैसे डिसाइड करे कि जब मेरी बात हो, कोई किसी कमरे में मेरे बारे में बात करे, तो उसके जहन में वो कौन से लफ्ज क्लिक करें कि जी वजाहत साहब, अच्छा तो ये वाली इंडस्ट्री, ये वाली बात, ये वाली चीज, वो जो बहुत जबरदस्त सवाल किया सर, वो थोड़ा सा सर बहुत अच्छा इन्होंने सवाल किया वजाहत ने, और बड़ा अच्छा लगा मुझे इस तरह का सवाल आ रहा है मेरी जानिब। मैं वजाहत से सर ये पूछना चाहूंगा, वजाहत मुझे अगर आप सुन रहे हैं, मेरे ख्याल से हम पिछले 1-1.5 घंटे से बात कर रहे हैं, तो मेरी टैगलाइन क्या है आपकी नजर में? यस वजाद, यस वजाद, यू कैन रिस्पॉन्ड। आपकी टैगलाइन एक सर, आपकी जी बिल्कुल, आपकी जो टैगलाइन है सर, वो एक डाइवर्सिफाइड किस्म की है। एंड टिल नाउ जो मैंने आपको एक परसीव किया है, यू आर अ इम्पैक्ट क्रिएटर, यू नो, यू आर अ सोशल एंटरप्रेन्योर, नो डाउट अ कॉर्पोरेट ट्रेनर, लेकिन आप लोगों की जिंदगियों में एक डिफरेंस क्रिएट करते हैं। फॉर मी यू आर अ डिफरेंस मेकर इन सोसाइटी। ओके वजाहत, तो मुझे ये बताएं, ओके थैंक यू सो मच फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। मुझे ये बताएं वजाहत के 1-1.5 घंटे के अंदर मैंने अपनी टैगलाइन कैसे बना ली? कोई मेरे पास जादू है क्या? आपने अपनी सर विद द इंफॉर्मेशन यू हैव प्रोवाइडेड सो फार, विद द सॉल्यूशंस, वर्केबल सॉल्यूशन जो आपने हमें दिए हैं यूथ को, जिनके ऊपर हम काम करें, वो सवालिया निशान जो आपने हमारे जहन में उभारे हैं, उनको कंसीडर करके मैंने ये टैगलाइन डेवलप की है। ठीक है, अब आप मुझे ये बताएं वजाहत, वेरी लॉस्ट क्वेश्चन, मुझे ये बताएं आप अपनी टैगलाइन किस तरह से बना सकते हैं? सर आई वांट टू बी अ होस्ट, आई वांट टू बी अ पब्लिक स्पीकर, आई कैन नॉट बी अ ट्रेनर, प्रोफेशनल ट्रेनर, लेकिन मेरा ख्वाहिश है, मेरे पैशन का हिस्सा है। मैं फाइनेंस साइड से हूँ, मैं फाइनेंस साइड से हूँ। अकाउंट्स वाले आपको पता है बड़े अजीब से किस्म के लोग होते हैं, ऑफिस वर्क बस इससे बाहर नहीं जाना, लेकिन मुझे आई लव होस्टिंग एंड दिस थिंग्स। तो मैं चाहता हूँ कि इस किस्म की टैगलाइन हो कि लोग मुझे, मैं समझ गया हूँ आपकी बात। मैंने एक्चुअली आपसे सवाल क्यों पूछे थे, वो इसलिए कि मैं चाह रहा था कि आपके सवाल के अंदर ही आपका जवाब है। और वजाहत ये है कि देखें टैगलाइन क्या है,
लोग कहते हैं स्लोगन की बात करते हैं, मैं यूफोन की बात करता हूँ, लोग कहते हैं इट्स ऑल अबाउट यू, सिर्फ तुम ही तो हो। टैगलाइन मेरी नजर में टैगलाइन इज जस्ट लाइक अ परसेप्शन, कि आप किस तरह से परसेप्शन क्रिएट कर जाते हो उस टाइम फ्रेम के अंदर। अब आप जब जॉब कर रहे हो, जहाँ पे ऑफिस में आप जॉब कर रहे हो, आप अपनी परसेप्शन इस तरह से क्रिएट करो कि लोग, वहां पे कोई इवेंट होता है तो लोग आपको होस्टिंग के लिए दें, वो दें, मौका दें, लोगों को बाहर से कोई नहीं बुलाना पड़े, आप अपने इंटरेस्ट शो करो, आप अपने आप को सोशल मीडिया के ऊपर जाके या अपने एम्प्लॉइज के अंदर इस तरह की परसेप्शन क्रिएट करो कि लोग कहें कि इससे अच्छा कोई होस्ट नहीं हो सकता। और अगर इसको कोई टेंजिबल फॉर्म के अंदर आपको ये चीज चाहिए, तो आप अपने यूनिवर्सिटीज में जाके किसी दिन किसी टीचर से टाइम लेके रिक्वेस्ट करके रिटर्न या फॉर्मली जैसे भी आप कोई इवेंट करे वहां पे करा के, और जो भी आपकी स्ट्रेंथ है उसके ऊपर बात करो, उसके इमेजेस निकालो, उसको सोशल मीडिया पर अपना पेज बनाओ, उसको यूटिलाइज करो, उसकी मार्केटिंग करो, अच्छी सी ब्रांडिंग करो, और उसके रेफरेंस को आप यूज करो अपनी प्रोफेशनल के अंदर, उसके अंदर ऑफिस के अंदर, और जाके आप होस्टिंग शुरू कर दो। सो ये टैगलाइन बेसिकली इट्स ऑल अबाउट परसेप्शन, जो मैंने यहाँ पे पिछले 1-1.5 घंटे में अपने बारे में क्रिएट की, जो मैंने आपके बारे में क्रिएट की। तो जितनी अच्छी आप परसेप्शंस क्रिएट करेंगे अपने स्किल्स के रिलेटेड, उतनी अच्छी आपकी टैगलाइन बनेगी। All right. टैगलाइन इट्स जस्ट नॉट लाइक अ स्लोगन, कि आप एक स्लोगन है और उसी के ऊपर है, और इट्स ऑल अबाउट परसेप्शन। Exactly. Adding to your point, sir, ये वजह साहब की personality और the way he actually communicated all. So उन्होंने एटलीस्ट मेरी परसेप्शन जरूर माशाल्लाह सर। फाइनेंस के लोगों के बारे में चेंज की है। जिस तरह आई हैड अ परसेप्शन दैट फाइनेंस पीपल यूज्ड टू बी वेरी रिजर्व एंड ऑल दैट, द वे ही कम्युनिकेट्स ही शुड बी इधर इधर इन मार्केट में ही हैज सर मैं आपको एक चीज बताऊं, यहाँ से एक चीज मैं ऐड करूं, जो लोग नंबरों के साथ खेलते हैं ना सर, वो बड़े शातिर होते हैं सर, याद रखिएगा मेरी बात। वो बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, वो बड़े गहरे लोग होते हैं, जिनके नंबरों से खेलना हर एक का काम नहीं है सर। बिल्कुल, वो तभी तो बड़े डाइवर्सिफाइड पर्सनालिटी होती है। and this is the reason they able to actually manage the finances and all that, क्योंकि वो मतलब प्ले तो बड़ा अच्छा कर ही लेते हैं। Anyhow, sir, we have Thank you so much sir, for this compliment. okay, all right. Thank you, Wajad, for being here and asking a very brilliant question. Thank Now you we so have much, sir. another lady, Miss Nimirta Rani, would like to ask a question. Miss Nimirta, I would definitely request you to please open up your mic and ask a question directly. Otherwise, I have to quote your question again. Sir, I have already asked my question. I'm done with my turn. Okay, that's wonderful. Nimirta is All right. All right. now. Wajahat has okay. All right, sir. That was a wonderful questions going ahead. So continuing to my discussions, because I have a little Sir. bit more liberty to ask you various question until you are not so exhausted. So sir, coming to the point. So Welcome sir. you given a lot of tips and techniques and strategy about the branding ourselves and how to brand someone, you know, in the market, in the society and all that. So does it really require, as we compare ourselves being in a brand like a company, you mentioned a lot of names and brands. So does people also need some sort of a vision, mission and values as of a company that carries? सर इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन सर। कोई भी चीज सर विदाउट विजन और मिशन के मेरे हिसाब से नहीं हो सकती। हर एक इंसान का एक विजन भी होता है, एक मिशन भी होता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन आवर ब्रांड के आप सोसाइटी को किस तरह से दे रहे हो, अपना सोसाइटी को किस तरह से आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, अपने आप को भी, और सोसाइटी में किस तरह से आप अपना इनपुट दे रहे हो। अब बहुत सारे ऐसे इदारे होते हैं जहाँ पे हम अपनी जॉब्स के, अपनी जो जॉब डिस्क्रिप्शंस होती है उसके अलावा भी हम वहाँ पे चीजें परफॉर्म कर रहे होते हैं जो कि हमारी ड्यूटी का हिस्सा नहीं होती, लेकिन वो हम क्यों कर रहे होते हैं? वो शायद हमें शौक होता है, हमारी स्किल से रिलेटेड होती हैं, या चाहे बाय फोर्सली वो हमारे ऊपर वो चीज डाल दी जाती है तो हम कर लेते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि सर विजन आपका होना बहुत जरूरी है, और विजन के साथ साथ एक ऐसी सोच होनी चाहिए, एक ऐसी आपके अंदर तख्लीक करदा थिंकिंग होनी चाहिए, सोच होनी चाहिए, जिससे आपको और सोसाइटी को कहीं ना कहीं उसका फायदा हो। और जैसे मैंने वो एग्जांपल दी सर, वो हॉस्पिटल वाली, इस तरह की बहुत सारी एक स्ट्रेटजीज आप डिजाइन कर सकते हो, और आप सोसाइटी को भी दे सकते हो, और वहां से आप रिटर्न भी कर सकते हो। मुझे सर मेरी नाचीज राय के अंदर यही समझ आता है सर। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, यू आर एब्सोल्युटली राइट सर। सो सर,
when we talk about the presence in the social media, and when we talk about the way we actually communicate, you also yourself explained that it is not necessary कि जिस शख्स की जो है कम्युनिकेशन इन इंग्लिश अच्छी है तो वही अच्छा कम्युनिकेटर है. So sir, what makes a person feel natural? मतलब what is the importance of being natural, get up, being natural in your get up while dealing in your community or presenting yourself being a brand, sir? मतलब उसमें natural code of conduct या natural आपका dress code होना चाहिए, communication style हो चाहिए. Does it have a positive impact on your brand building, sir? सर बड़ी खूबसूरत बात की आपने. एक्चुअली सर हमें ना मार्केट को देख के चलना पड़ता है. लाइक के मुझे ये, मैं अगर जा रहा हूँ आईबीएम में तो मुझे सबसे पहले तो मैं सोचूंगा आईबीएम में जा रहा हूँ तो मुझे क्या मेरी ड्रेसिंग कैसी होनी चाहिए, वहां पे मेरी टॉप किस किस्म की होनी चाहिए, वहां पे जो मैं अपनी जो मेरे स्टाइल है क्या वहां पे मैं उसको चेंज करूं या उसको वैसे ही रहने दूं. सो हर ब्रांड जो होता है वो मार्केट की रिसर्च करके वो जो है ना अपने अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च करता है. कभी भी ऐसा नहीं होता कि वो विदाउट रिसर्च करके सेगमेंट्स को सिलेक्ट किए बगैर या अपनी चीजों को सिलेक्ट किए बगैर वहां पे वो चीज को लॉन्च कर दे. ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता. मुझे एक ब्रांड का याद नहीं आ रहा, मैं शायद मेरे माइंड में आ जाए, वो उसमें ये था कि एक गाड़ी लॉन्च की थी जर्मनी में और उसका मतलब जो जर्मनी के अंदर उसका मतलब तो था कि बहुत अच्छा चलती है, लेकिन जब उसको आप कन्वर्ट ट्रांसलेट करते थे इंग्लिश में तो उसका मतलब था कि वो चलती ही नहीं है. तो यूएस के अंदर वो गाड़ी जो है वो बिल्कुल ब्रांड ही नहीं चला, लेकिन वो आज भी जर्मनी में वो एक बड़ा ब्रांड है. मुझे उसकी कंपनी का नाम याद नहीं आ रहा. एनीवे, तो ये जो सर आपकी आपने बात की सोशल मीडिया की, आपने बात की ड्रेसिंग की. फॉर एग्जांपल अगर मैं जाता हूँ केपीके के अंदर किसी यूनिवर्सिटी के अंदर तो वहां पे लोग सूट्स भी पहनते हैं, टाई भी लगाते हैं वहां पे जो है, लेकिन मोस्टली लोग क्या होते हैं वो एक जो हमारा कौमी लिबास है उसको पहन के जाते हैं. आप किसी भी मार्केट में जा रहे हो, अगर उसके मुताबिक आप अपने आप को बना के जाते हो तो उसका बड़ा इम्पैक्ट है सर. उसकी बड़ी लोग बात उस आपकी बात की बड़ी वैल्यू करेंगे. मैं यहाँ पे अगर वो मुझे सिंधी नहीं आती, अगर मैं सर यहाँ पे सिंधी में बात करूंगा तो शायद आप मेरे से ज्यादा अटैच हो जाएं. वो मैं एक जगह सेशन करने के लिए गया तो वहां पे मुझे मिल गए साहब. मैंने कहा आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो उन्होंने मुझे कहा सर कि मैं ना मीरपुर मतलब सिंध का कोई इस तरह का एरिया था. तो मैंने कहा कि मुझे बताए ना सिंधी में क्या कहते हैं, कैसे हम कहते हैं, अरे बाबा शाह है. अब मैंने उसके एक्सेंट को भी कॉपी करने की कोशिश की कि मुझे वो एक्सेंट भी मिल जाए. तो मैं कभी कभी सिंध आता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि किसी इसमें कम्युनिकेट करूँ तो अगला बंदा बड़ा मुझे ना बड़ी खुशी के साथ मुझे वो ऑन करता है कि ये हमारे कल्चर से शायद बिलोंग करता हो. तो ये चीजें सर बड़ी इंपैक्ट करती हैं और इसका बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट. लोग आपको ऑन करते हैं, लोग आपको स्पेस देते हैं. स्पेस के अंदर आप जाके फिर देखिए होता क्या है, दो लोगों के बीच या एक ऑडियंस और लोगों के बीच में एक गैप होता है शुरू के अंदर. अगर आप उस गैप को जितनी जल्दी फिल कर लेते हो और उतनी जल्दी आप इंजॉय करोगे. एक हर ऑडियंस हर किस्म के लोग होते हैं और अगर आप 200 लोगों में बात कर रहे हो और अगर आपने 200 लोगों के जो माइंड है अपने माइंड के साथ मैप कर लिया, वो कुछ टिप्स होते हैं तो वो मैं बाद में शायद आपको बताऊं. तो उसके बाद आप इंजॉय करें. सारी ऑडियंस आपके साथ बैठी है, सारी ऑडियंस आप जिस तरीके से लेके उनको चलें आप लेके चल सकते हैं, उसका बड़ा इम्पैक्ट होता है. और अगर आप नहीं भी करते लेकिन आपके अंदर एक अल्लाह ताला की गॉड गिफ्टेड कोई सलाहियत है, आप उस कम्युनिकेशन गैप को, उन हर्डल्स को जो बैरियर्स होते हैं आप उसको खत्म करके उसके मैं अपना एक रिलेशन डेवलप कर लेते हो कम टाइम के अंदर, तो मेरे ख्याल से इससे अच्छी और क्या खूबी हो सकती है. और ये बड़ी जबरदस्त चीज है सर. माशाल्लाह ये चीज मैंने आपके अंदर भी देखी है. जब हमारी फर्स्ट मुलाकात हुई थी तो फोन पे बात हुई थी तो उस वक्त मुझे लगा कि मैंने उस वक्त भी आपसे ये जिक्र किया था कि मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं किसी पुराने दोस्त से बात कर रहा हूँ. तो ये अल्लाह ताला की तरफ से चीजें होती हैं गॉड गिफ्टेड. तो इन चीजों को भी हम अपने अंदर आइडेंटिफाई कर ले तो मेरे ख्याल से बहुत बेहतर है सर. Sir, thank you very much for the compliments. आपने इतना बड़ा एजाज मुझे दिया है and I really so obliged and I'm sure our participants are also feeling so much comfortable while talking to you. They must be feeling they are talking to their elder brother and the coach and the mentor as well. And we are expecting you to be a physical here and guide them in for their practical to build to help them to इंशाल्लाह सर मैं practical life, sir. इंशाल्लाह मैं जरूर आऊंगा क्योंकि बजाज से मैंने वो चिकन कढ़ाई भी खानी है, रोटी भी देखना है और इंशाल्लाह आपके पास तो डेफिनेटली मैं आऊंगा. All right, sir. All right, sir. सर one additional thing if you allow me, क्योंकि मैं बेसिकली ये चाह रहा हूँ क्योंकि नॉर्मली हमने देखा है सोशल मीडिया को अगर आप देख लें, स्पेशली आई वुड लाइक टू कोट अबाउट द फेसबुक एंड द टिकटॉक स्पेशली नाउडेज, people are actually now has in fact gone to the limits. मतलब आप उनमें इवन सेल्फ इमेज को भी बाज़ औक़ात वो थोड़ा सा
शायद कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं, या फिर हमारे जो इथिकल वैल्यूज हैं विद रिस्पेक्ट टू अवर सोसाइटी, अवर रिलीजन, Sir, our values, sir. our moral values. So somehow they are being compromised. So how would you advise our youngsters, the graduates, who are actually are so much eager to build themselves as in a brand, but somehow in Sure, order sir, to sir. have that craze or the that objective, they somehow overlap some our boundaries and the limitation which really hurts our religious and Sir, our different ethical ethical lines. So आप किस तरह की sir, sir. गाइडेंस सर देना चाहेंगे हमारे ग्रेजुएट्स को सर? सर बहुत ही जबरदस्त सवाल सर आपने किया। बड़े अब ये इसमें एंड के ऊपर मैंने डिस्कशन करनी थी। बहुत जबरदस्त सवाल है सर। देखें, हर इंसान को पता होता है कि उसकी लिमिट्स क्या है। वही बात है कि आपने अपना ब्रांड जो है वो पॉजिटिवली बनाना है या नेगेटिवली बनाना है। सबसे बड़ा इशू इस वक्त क्या है जो मैं देखता हूँ अपने यूथ के अंदर, मैं अपने अपने बशमूल अपने साथ में ये बात कर रहा हूँ, हम सब लोगों को एक रात के अंदर स्टार बनना है। हम सबको एक ही रात के अंदर एक ऐसा ब्रांड बनना है जो दुनिया के ऊपर छा जाए। ब्रांडिंग इट्स नॉट अ कप ऑफ टी। एक ऐसी रेसिपी नहीं है कि जिसके ऊपर आपने बस ये चीजें की और आप ब्रांड बन गए हो। इट्स अ लॉन्ग लॉन्ग टर्म प्रोसेस सर। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ऊपर शायद सदियां बीत जाएं और आपका ब्रांड बनता है। ईदी साहब ने पूरी जिंदगी दी तो फिर वो ईदी साहब कहलाए। इसी तरह और भी बहुत सारी ऐसी शख्सियात हैं, मैं शायद उनका नाम इसलिए नहीं लेना चाहता क्योंकि बहुत डिफरेंट बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं तो वो कंट्रोवर्शियल हो जाता है। तो लोगों ने पूरी पूरी अपनी जिंदगी दे के अपना ब्रांड बनाया है और उसी चीज के साथ चिपके रहे, उसके ऊपर काम करके उसी के ऊपर उसी फील्ड के अंदर वो जाके उन्होंने एंड के ऊपर अपना नाम कमाया। सो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि एक डे एंड नाइट के अंदर आप अपना ब्रांड नहीं बना सकते। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट सर ये है कि समटाइम हमें ये लगता है कि हम ये कर लें इससे भी हमारा ब्रांड बन जाएगा, ये कर लें इससे भी बन जाएगा, ये कर लें इससे भी बन जाएगा। तो उस चीज को करने के अंदर लोग अपनी लिमिट्स को, लोग अपनी बाउंड्रीज को भूल जाते हैं। लोग ये समझते हैं कि इसकी ऑडियंस, इसकी मुझे व्यूअरशिप ज्यादा मिल रही है तो मैं ये कर रहा हूं। जैसे टिकटॉक के ऊपर पाबंदी लगी तो उसके पीछे कुछ सर्टेन रीजन थे जो हमारे बैकग्राउंड्स को, नॉर्म्स, वैल्यूज को वो सपोर्ट नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से गवर्नमेंट इतना बड़ा डिसीजन लिया। लेकिन एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है सर? एक्चुअली प्रॉब्लम यह है कि लोग सोसाइटी में ज्यादातर आजकल लोग क्या देखते हैं, एक बात है यूट्यूब में आप लोगों के मोबाइल अगर आप देखें तो यूट्यूब पे लोगों की सर्च हिस्ट्री देखें तो क्या देखते हैं? म्यूजिक मिलेगा आपको, आपको कॉमेडियंस कुछ वीडियोस मिलेंगी। कितने परसेंट लोग हैं जो वहां पे लर्निंग करते हैं या क्या करते हैं? तो सोसाइटी में जो बच्चे होते हैं उनको नजर आता है कि भाई ये बंदा कर रहे हैं ना तो इसकी व्यूअरशिप ज्यादा है तो मैं भी ये कर लूं तो मुझे भी ये चीज मिल जाएगी। लेकिन वो ये यहाँ भूल जाता है कि भाई वो जो ब्रांड आप उसका ब्रांड देख के आप अपना ब्रांड बना रहे हो, उसमें आप अपना नाम भी डैमेज करोगे, अपने इंस्टीट्यूशन का नाम भी आप डैमेज करोगे, आप अपने फैमिली का नाम भी डैमेज करोगे और आखिर पे वो ब्रांड भी नहीं बन पाओगे जो वो बना हुआ है। तो होगा क्या? आपने अपने प्रोसेस के ऊपर मेहनत भी की, आपने टाइम भी लगाया, आपने पैसा भी लगाया, आपने एनर्जी भी लगाई, ना वो ब्रांड बन सके, उल्टा अपने आपको ब्रांड को भी खराब कर दिया। सो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि इंसान को पहले से ही अपनी कुछ चीजें सिलेक्ट कर लेनी चाहिए। लाइक अगर मैं बात करूं अपनी, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं समझता हूं कि लोग कर रहे हैं मेरी फील्ड के अंदर, मैंने नहीं की। अब मुझे तकरीबन राउंड अबाउट 3 से 4 साल हो गए इस फील्ड के अंदर, लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अल्लाह का करम और शुक्र अदा करता हूं कि मुझे ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म अल्लाह ने मुहैया किए जिनके ऊपर मैं ख्वाब देखा था। मैंने शुरू से वजात के मेरा ख्वाब था कि मैं IBA आऊं, सीरियसली मेरा ख्वाब था कि मैं यहाँ से पढ़ूं। लेकिन आज मैं IBA वालों के साथ बैठा हूं तो मुझे लगा है कि शायद इससे बड़ी क्या बात होगी। ठीक है, तो आप स्ट्रेटेजिकली चलते हो, एक स्ट्रेटेजी डिजाइन करते हो कि आपने काम कैसे करना है, कहाँ करना है, कब करना है। या तो मैं बहुत सारे सेशन कर लूं एक साथ सब जगह, या मैं चूजी हो जाऊं, सिलेक्टिव हो जाऊं कि भाई यहाँ मैंने जाना है। और अल्हम्दुलिल्लाह जब यहाँ मैंने जाना है तो मैंने वहां जाके अपने कुछ फिंगरप्रिंट्स छोड़े, जहां से मुझे लगा कि मुझे ये फिंगरप्रिंट वहां पहुंचाएगा। जैसे ही मतलब आपने मैम से बात की तो मैंने मैम के सामने इस तरह का शो किया तो उन्होंने मेरी बात की ना, इस तरह से मैंने उनको इंस्पायर किया तो उन्होंने मेरी बात की और अल्लाह ताला ने मुझे IBA पहुंचा दिया। सो इस तरह से आपको चलना चाहिए। टाइम टेकिंग, टाइम लगेगा, एनर्जी लगेगी, डिप्रेशन में जाएंगे, स्ट्रेस में जाएंगे, नहीं होगा, नाकामी 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 नाकामी, लेकिन एक दिन वो अल्लाह ताला कहते हैं ना बार बार दस्तक देने से दरवाजा खुल जाता है। सो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी बाउंड्रीज को भूल के आप चले जाएं
दूसरी साइड पे वहां पे अपना ब्रांड भी खराब कर दें और सब कुछ खराब कर दें और फिर एंड पे कहें कि वो कहते हैं ना कि काश के मैं ऐसे कर लेता। वो एक बड़ी खूबसूरत स्टोरी है, शायद आपने सोशल मीडिया को भी देखी हो। वो एक साहब होते हैं, वेरी शॉर्टली सर मैं उसको बताऊंगा। वो एक साहब होते हैं, तो वो एक जगह काम करते हैं किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी के अंदर। तो जब वो बुजुर्ग हो जाते हैं तो वो सोचते हैं कि बस अब मुझसे काम नहीं होता, तो वो जाके अपना रिजाइन देते हैं, सर अब मजीद मैं आपके साथ काम नहीं कर सकता। तो वो जो ओनर होते कहते हैं ठीक है अच्छा आपने काम नहीं करना तो एक लॉस्ट प्रोजेक्ट है, अगर आप हमारे साथ ये कर लें तो शायद जो है इसके बाद हम आपको जाने देंगे। तो कहते हैं ठीक है इतना साल काम किया है, 50 साल 30-35 साल, तो एक प्रोजेक्ट और कर लेता हूँ। लेकिन उस प्रोजेक्ट के अंदर वो इंटरेस्ट नहीं लेते, वो उसकी डिजाइनिंग के अंदर, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, उसके अंदर वो जो चीजें हैं वो इंटरेस्ट लेते, वो ऐसा घर बनाते हैं जो उन्होंने अपने पूरे करियर में नहीं बनाया होता। और वो जो है कहते हैं बस जल्दी जल्दी से हो जाए और मैं बस यहाँ से मेरी जान छूट जाए। लेकिन जैसे ही वो जाते हैं तो वो साहब टेबल से वो जो है ना घर की चाबी निकाल के देते हैं कि हमारी तरफ से आपका गिफ्ट है। तो वो ये सोचते हैं कि अगर मुझे पता होता कि ये मेरे लिए, ये मैं अपने लिए बना रहा हूँ, तो मैं इसको शायद बहुत बेहतर तरीके से बनाता। तो उसको वो ये कहते हैं कि काश मुझे पहले पता होता। सो ये एक स्टोरी का मतलब ये है कि हम लोग जल्दबाजी के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसे कर जाते हैं जो कि बाद में कहते हैं कि काश ऐसा ना होता या काश मुझे पहले पता होता। तो मैं यंगस्टर को यही कहूंगा कि अपने नॉर्म्स, वैल्यूज, अपने फैमिली कल्चर, अपने बुजुर्गों के जो ब्रांड्स हैं, जो सोसाइटी में उनका इमेज है, अपने टीचर्स का खास तौर पे, अपने इदारे का, उनको माइंड में रखते हुए अगर आप सेल्फ ब्रांडिंग करें तो आप ऐसा ब्रांड बनेंगे कि लोग आपको कहेंगे कि इससे बेहतर ब्रांड नहीं। That's wonderful, sir. It's a great guidance again. Matlab, that is something kind of a like a rehabilitation message for those who are actually attention seeker. Or jo, matlab, I mean, we can see, we should not name anyone, but we can at least Sir. observe in the social media there are many people who are actually attention seeker are bullying the society. So somehow, जिस तरह आपने बताया, one or other way, it not only damages themselves, but it also harm to the society as a whole. So, sir, now we are approaching to the conclusion. So, and finally, I would also we have been we are being appreciated a lot from Mr. Zaur Sumro. He is appreciating your discussion and the session, sir. Ms. Rabia Mehman as well. She is also grateful to you. And more or less, I would also like to give an opportunity to the participants if they have a conclusive questions, to please ask Mr. Sikandar Ali Khan. Otherwise, I will have to conclude this session and will take a leave from Mr. Sikandar साहब, जो मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा है इस वक्त। पार्टिसिपेंट से अगर मजीद जो है कोई क्वेश्चन करना चाहे तो प्लीज दे आर गो अहेड। सर जब तक ये सवाल करते हैं तब तक जो है मैं सर एक चीज ऐड करना चाहूँ। साइकोलॉजिकली बड़ा इम्पैक्ट है सोशल मीडिया का हमारे जहनों के ऊपर। वो ये है कि हम लोग लाइक्स के चक्कर के अंदर जो है ना अपने आप को भूल जाते हैं। हम लाइक्स के चक्कर के अंदर वो खुशी भूल जाते हैं। इसकी मैं अक्सर मिसाल देता हूँ। मैं दोस्तों के साथ कहीं विजिट करता हूँ ना, नॉर्दर्न एरियाज कहीं, वो जो जिस मंजर को देखने के लिए हम जाते हैं, जिस सनसेट को देखने के लिए हम जाते हैं, जिस वो पिक्चर को देखने के लिए हम जाते हैं, उसको फील करने के बजाय हम सेल फोन निकाल के उसकी पिक्चर लेने में इंटरेस्टेड हो जाते हैं। तो वो जो मंजर जिसके लिए हमने इतना सफर किया, वो जो सनसेट जिसके लिए हमने इतनी तकलीफें देखी, वो जो खूबसूरती हम देखने के लिए गए, हम उसको भूल के उस पिक्चर के अंदर लग गए, तो मेरे ख्याल से वो मजा सारा कुरकुरा हो जाता है। तो और बाद में हमने वही सोशल मीडिया पे अपलोड करना है। तो मैं अक्सर कहता हूँ कि पहले हम इसको एंजॉय क्यों नहीं करते, इसको एंजॉय कर लें, उसके बाद इसकी पिक्चर ले लें। तो मेरे ख्याल से दोनों काम हो जाते हैं। फिर क्या होता है, हम सोशल मीडिया के ऊपर जब चीजें डालते हैं और उसके बाद क्या होता है, वो हम बैठ जाते हैं किसका लाइक आया, किसका लाइक आया, अच्छा किसी ने हार्ट बनाया, किसी ने थंब अप किया, किसी ने क्या किया। और फिर अगर ज्यादा हो गए तो हमारा मूड अच्छा हो गया, और अगर कम हो गए डिप्रेशन में चले गए। अगले दिन गए क्लास के अंदर, इसने तो मेरा लाइक नहीं किया था, मैं इससे बात नहीं करती, इसने इसको पसंद नहीं किया, मैं इससे बात नहीं करता, उससे हमारे रिलेशंस खराब हो गए, फिर वो दूरियां पैदा हो गई और फिर मामला खराब हो गए। सो साइकोलॉजिकली इतना इम्पैक्ट है सारी इन चीजों का, जो कि हम जाने अनजाने के अंदर जो है हम उसको भूल जाते हैं। तो मेरे ख्याल से इस चीज को नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। Sir, now it's again a great discussion and very beautiful advice. And Ms. Rabia Mehman is also commenting on that. She has also tried it and build her own brand, which is now she feels more confident after hearing your session and all that. So wonderful, sir. So any final comments and advice for youngsters, that though you have been given a lot of advices throughout the sessions. So in order to conclude this session, I would request you to please comment
और कुछ कहना चाहें रिगार्डिंग दिस सेशन? सर मैं 3 बातें करना चाहूंगा, बट उससे पहले सर मैं वंस अगेन मैं आपका बहुत मशकूर हूँ, आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपने मुझे बहुत वंडरफुल अपॉर्चुनिटी दी और मैं यहाँ पे अपनी मैम हिना का भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। और ये तमाम जो लोग मुझे यहाँ पे सुन रहे हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगा। बड़ी एक बहुत अच्छा वैल्यू एडिशन वंस अगेन मैं कहूंगा आपकी शक्ल में मेरी लाइफ में 2020 ने जाते-जाते मुझे दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम वेरी लकी। अल्लाह ताला ऐसे लोग मेरी ज़िंदगी में शामिल कर लेते हैं। और ये तमाम लोग जो मुझे यहाँ पे देख रहे हैं या सुन रहे हैं, इनका भी शुक्रिया है कि ये भी एक एसेट है मेरे लिए, जो मेरी ज़िंदगी में इनका तारुफ हुआ। वंस अगेन आई एम रियली थैंकफुल टू यू। 3 बातें मैं करना चाहूंगा सर एंड पे। और सबसे पहली बात कंफर्ट जोन की करूंगा। हमारे अपने बनाए हुए एक खोल हैं, अपने एक शेल हैं जिसके अंदर हम जिंदगी गुजार रहे हैं। व्हेनेवर हम जब भी उन कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं और प्रॉब्लम्स हमें डराती हैं और लोग भी उनमें शामिल होते हैं, हमें क्रिटिसाइज करते हैं और बहुत कुछ होता है। लेकिन हम उसको अगर फेस कर जाते हैं तो उसके बाद एक जोन बन जाता है जिसको हम बोलते हैं करेज जोन। और करेज जो होती है वो आपको फिर आसमान की बुलंदियों तक लेके जाती है और फिर आपका नाम भी पैदा होता है, पहली बात। दूसरी बात वो ये है, पर्सनल ब्रांडिंग के अंदर बहुत सारे लोग आपके साथ खेलते हैं। जब आप अपना ब्रांड बना रहे होते हैं या आपका ब्रांड बन चुका होता है तो बहुत सारे लोग आपके इर्द गिर्द, चाहे वो दोस्तों की शक्ल में हो, चाहे वो रिश्तेदारों की शक्ल में हो, चाहे वो लोग हो जिनको आप अपना दोस्त समझ रहे होते हैं, जो कोई भी हो, वो आपके ऊपर बात करेंगे, आपके ऊपर हंसेंगे, आपको डिस्करेज करेंगे। तो मेरी एक नाचीज राय के अंदर एक छोटी सी एडवाइस वो ये है कि पर्सनल ब्रांडिंग के अंदर कभी भी अपनी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल किसी दूसरे के हाथ में नहीं दें। और जब कभी मौका मिला तो इसके ऊपर मैं जरूर आके वहां पे बात करूंगा, इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर, कि हमारी जिंदगी जो है वो हम एक टेलीविजन की तरह है, एक टीवी की तरह या एलईडी स्क्रीन की तरह है हमारी जिंदगी हम सब। और कभी भी अपनी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल किसी दूसरे के हाथ में ना दें कि वो चाहे तो बटन प्रेस करे आप हंसने लग जाएं, वो चाहे तो बटन प्रेस करे आपको गम में ले जाए, वो चाहे तो आपको डिप्रेशन में डाल दे। जो पर्सनल ब्रांड होता है ना, वो इन चीजों से इफेक्ट नहीं होता। उसकी अपनी एक सोच होती है, उसका अपना एक मिजाज होता है, उसकी अपनी पर्सनैलिटी होती है, उसका अपना एक कॉन्फिडेंस होता है। वो अपनी लाइफ का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखता है और उसको लेके चलाता है, तो फिर दुनिया उनके पीछे जाती है। जब आप लोगों की चीजों से इफेक्ट होके स्विच ऑन एंड ऑफ होते रहेंगे तो आपके फॉलोअर्स कैसे बनेंगे और आपके फैन कैसे बनेंगे? जब तक आप खुद मजबूत नहीं होंगे तो लोग आपको कैसे फॉलो करेंगे? दूसरी बात एंड तीसरी बात जो लास्ट में मैं कहूंगा, जिससे मेरी जिंदगी बहुत चेंज हुई, जिससे मैं बहुत चेंज हुआ, मैं किसी दूसरे की बात नहीं करना चाहता, मैं आपके सामने मौजूद हूँ। आई एम फ्रॉम वेरी लो मिडिल क्लास फैमिली बट आई पॉलिश्ड माई सेल्फ। और मैंने जो भी किया तो एक लाइन जो जिसने मुझे चेंज किया वो ये है कि एक बहुत ही कहते हैं कि नॉलेज जहां से भी मिले ना आपको ले लेना चाहिए। मैंने अपने सेशन में भी बात की, आप कॉन्फ्रेंस मीटिंग में कहीं पे भी जाएं तो कोई एक ऐसी बात जरूर आपको मिलेगी जो नई होगी, जिससे आपकी सामने विंडोज खुल जाएंगी सोचने की। तो मैं एक मूवी देख रहा था आज से कुछ साल पहले, तो उस लाइन ने मेरी जिंदगी बदल दी और वो ये थी कि जिंदगी जीने के 2 ही तरीके होते हैं, जो हो रहा है उससे होने दो, बर्दाश्त करते जाओ, या फिर जिम्मेदारी उठाओ उसे बदलने की। अब मूवी रंग दे बसंती, आमिर खान। सो उस लाइन ने मुझे किया कि कर तो सब रहे हैं, जो हो रहा है उसे होने दो, बर्दाश्त कर। हम बर्दाश्त भी कर रहे हैं, हम लोगों की बातें भी सुन रहे हैं, हम ये भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, हम जिंदगी का सर्कल भी चला रहे हैं, बट ब्रांड उनका बंद है जो जिम्मेदारी उठाते हैं कुछ बदलने की, चाहे वो अपनी जात की हो, अपनी फैमिली की हो, अपने इदारे की हो, अपने मुल्क की हो, अपने कौम की हो, अपने कबीले की हो। तो आखिर में यही कहूंगा कि जो लोग इस मुश्किल रास्ते को पर सफर करने को तैयार होते हैं तो आखिर में दुनिया और लाइफ उसको रिटर्न करती है। तो दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच सिकंदर अली खान साहब। आप हैं सीनियर कंसल्टेंट एंड ट्रेनिंग फैसिलिटेटर, वन ऑफ द सीनियर एंड वेरी रिकग्नाइज्ड पर्सनालिटी इन द इंडस्ट्री। और इनका बहुत डिटेल्ड मैंने इंट्रोडक्शन दिया था। और सर आपका बहुत शुक्रिया। और मैं पार्टिसिपेंट्स का भी शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ कि जिन लोगों ने टाइम दिया और बड़े अच्छे वैलिड, बड़े बेहतरीन एंगेजिंग क्वेश्चंस आपने पूछे। आई रियली अप्रिशिएट दैट। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर टू स्पेंड टाइम विद अस। एंड सर थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह सी यू सून इंशाल्लाह इन नेक्स्ट सेशन। और आप सब लोग शुक्रिया लर्निंग लेजेंड के लिए। सर आपने टाइम निकाला, लर्निंग लेजेंड बोर्ड से वेरी मच ग्रेटफुल टू यू। ऑलवेज वेलकम सर।
ऑलवेज वेलकम सर, इंशाल्लाह। और जिंदगी रही तो फिजिकली आपसे आके मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह और sir. इंशाल्लाह आपका कैंपस भी विजिट करेंगे और अपनी ये ख्वाहिश भी पूरी करेंगे आइंदे वाली। Inshallah, sir. Thank you very much, sir. Thank you all. Thank you, sir. Inshallah, we will be meeting you in the next session with a different topic with again a respected and distinguished guest like Sikandar Saab. Thank you, all of you. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Take care Thank you and so stay much. blessed. Thank you, sir. Thank you. Allah Hafiz.